So we are starting this thing, prehistory. Actually, we have to do history, especially ancient history, from zero again because I think I lack clarity in this subject. कई सवाल नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं तो फिर से मैं इसको एक पढ़ रहा हूँ. So the English word history comes from the Greek historia, meaning inquiry, and it corresponds to the study of the past and throws lights on various past events of significance which shaped and evolved human experience. History is further divided into prehistory, proto-history and history. ठीक है. So history is pre-divided into three parts, and like that. Events occurring before the invention of writing are considered the domain of prehistory, which is generally represented by the three stone ages. तो three stone ages में आते हैं, but let's not get into them right now. Defining proto-history is rather difficult as it has different connotations. Generally, it refers to a period between prehistory and history, during which a culture or civilization has not yet developed writing, but are mentioned in the written records of a contemporary literate civilization. For example, the script of the Harappan civilization remains undeciphered. However, since its existence is noted in Mesopotamian writings, it is considered a part of proto-history. That is after prehistory. Now, similarly, the Vedic civilization from 1500 to 600 BC, that is the Vedic civilization, had an oral literary tradition. Though they did not take to literary writing, इनका oral literary tradition था. They did not take to literary writing. They can thus be considered a part of proto-history as well. ठीक है. Archaeologists consider Neolithic, Chalcolithic cultures to be a part of proto-history. Neolithic and Chalcolithic cultures, they are part of the proto-history. जब लिखा जाने लगा, लिखावट स्टार्ट हो गई थी. ठीक है. नहीं, क्या बोल रहे हो? हरप्पन बिलोंग्स टू द प्रोटो-हिस्ट्री, जहाँ स्क्रिप्ट का एग्जिस्टेंस देखा गया है. मेसोपोटामियन राइटिंग्स में कुछ हरप्पन सिविलाइजेशन की अपनी राइटिंग्स बताई गई हैं, बट दे कैन नॉट बी डिसाइफर्ड एज ऑफ नाउ. सो दैट विल कम इन प्रोटो-हिस्ट्री. मतलब राइटिंग हैज़ स्टार्टेड. सो यहाँ पे लिखा है ना, इवेंट्स अकरिंग बिफोर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग आर कंसिडर्ड द डोमेन ऑफ प्री हिस्ट्री, विच इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय द थ्री स्टोन एजेस. प्रोटो-हिस्ट्री में refers to the period between prehistory and history, during which a culture has not yet developed writing, but are mentioned in the written records of a contemporary literate civilization. तो ये देखो, बहुत फाइन पॉइंट है. कल्चर और सिविलाइजेशन हैज़ नॉट येट डेवलप्ड राइटिंग, बट वहाँ के बारे में कुछ लिटरेट कंटेम्प्रेरी लिटरेट सिविलाइजेशंस में जिक्र है. सो दैट इज़ हरप्पन सिविलाइजेशन. ठीक है. देन Chalcolithic and Neolithic, they also come under the proto-history, same as हरप्पन. ठीक है. एंड वैदिक सिविलाइजेशन हैड एन ओरल लिटरेरी ट्रेडिशन, तो उसको भी हम लोग प्रोटो-हिस्ट्री में रख सकते हैं. ठीक है. The study of the past after the invention of writing and the study of literate societies based on the written and archaeological sources constitutes history, and the history and identity of human settlements in India go back to prehistoric times. The credit for doing an early extensive study of Indian prehistory Robert Bruce Soot को दिया जाता है, who discovered what was probably the first Paleolithic tool discovered in India, the Palvaram hand axe. That's the first Paleolithic tool that was discovered by this person. Later, he discovered a large number of prehistoric sites in South India. The contribution of Mortimer Wheeler is equally significant, as his efforts greatly contributed towards our knowledge of the prehistorical cultures of India and their sequence. On the basis of geological age, the type of technology of his stone tools and subsistence base, the Indian Stone Age is classified primarily into three types. मैंने बताया ना, प्री हिस्ट्री के अंदर तीन स्टोन एजेस आते हैं. तो एक होता है अपर पैलियोलिथिक, एक होता है मिडिल पैलियोलिथिक. नहीं, स्टोन एज के प्री हिस्ट्री में आता है क्या? प्री हिस्ट्री में तीन प्रकार के स्टोन एजेस आते हैं. ठीक है. दैट इज़ पैलियोलिथिक, देन मीजोलिथिक एंड देन नियोलिथिक. सो ऑल दीज थ्री बिलोंग टू द स्टोन एज. ठीक है. ऑल दीज थ्री बिलोंग टू द स्टोन एज. अब देखो ये क्या है. अब पैलियोलिथिक को हम लोग कहते हैं कि 5 लाख से 10,000 साल पहले तक, या 10,000 BCE तक. 5 लाख से 10,000 BCE तक. कुछ जगह ये 12 भी होता है, तो इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है. 5 लाख से 10 या 11 एवरेज ले लो, 11,000 BCE तक तुम्हारा पैलियोलिथिक होता है. फिर मिजोलिथिक की बात करें, सो ये 2,000 साल तक रहता है. तो कुछ किताब में 10,000 से 8,000 लिखा हुआ है, कुछ किताबों में जैसे इसमें 10,000 से 6,000 BCE लिखा हुआ है. एंड देन नियोलिथिक 6,000 से 1,000 BCE है. A general time range is specified as there is a great deal of variation in the dates for different sites. ठीक है. तो मुद्दे की बात यह है कि
ये जो भी मैंने बताया अभी तुम्हें, पैलेलिथिक 5 लाख से 50,000, नॉट 50,000, 5 लाख से 10,000, फिर मीज़ोलिथिक 10,000 से 6,000, एंड नियोलिथिक 6,000 से 1,000। ये जो भी मैंने तुम्हें बताया, दीज आर द 3 स्टोन एजेस, ठीक है, एंड 3 स्टोन एजेस आर पार्ट ऑफ प्री हिस्ट्री, ठीक है। अब देखो पैलेलिथिक एज के बारे में बात करें, 5 लाख से लेकर 10,000 जो आ रहा है। अब यहाँ पे हंटर्स एंड फूड गैदरर्स का डोमिनेंस था। अर्लीस्ट पीरियड ऑफ द स्टोन एज विच डेवलप्ड इन द प्लीस्टोसीन पीरियड और आइस एज। सो इसके पैरेलल कौन सा वो चल रहा था, आइस एज चल रहा था। पैलेलिथिक, पी फॉर पैलेलिथिक, पी फॉर प्लीस्टोसीन, ठीक है, दोनों पैरेलल थे। इट वॉज स्प्रेड इन प्रैक्टिकली ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द एलुवियल प्लेन्स ऑफ द इंडस एंड गंगा, ठीक है। अब देखो यहीं पे सवाल बन जाएगा, घुमा देगा। अब इट वॉज स्प्रेड इन ऑल पार्ट्स, practically all parts of India. It was spread practically all parts of India except the alluvial plains of Indus and Ganga. तो इंडस नदी जहाँ पे वो हिंदू कुश वगैरह है और गंगा, इनके बीच का जो प्लेन्स है, यहाँ पे पैलेलिथिक एज स्प्रेड नहीं हुई थी, ठीक है। द पैलेलिथिक मैन ऑफ इंडिया आर सेड टू हैव बिलोंग्ड टू द नेग्रिटो रेस। इस पर भी सवाल बन सकता है। पैलेलिथिक मैन ऑफ इंडिया belongs to the Negrito race and lived in caves and rock shelters. They were food gathering people who lived on hunting and gathering wild fruits and vegetables. They had no knowledge of agriculture. They had no knowledge of house building, no knowledge of pottery or any metal. It was only in later stages that they attained the knowledge of fire. तो ये भी बाद में, फायर भी बाद में आया था। Man during this period used tools of unpolished, undressed, rough stones. Unpolished, undressed, rough stones का इस्तेमाल होता था। Mainly hand axes, cleavers, choppers. हैंड एक्सेस, क्लीवर्स, चॉपर्स, 3 नाम याद रखो बस, ठीक है। तो सिंस द स्टोन टूल्स वर मेड ऑफ हार्ड रॉक, वेरी शैबी एंड नॉट वेरी सोफिस्टिकेटेड, सो इस समय के लोगों को, एंड दे वर मेड ऑफ द स्टोन टूल्स वर मेड ऑफ हार्ड रॉक कॉल्ड क्वार्टजाइट, तो इस समय के लोगों को क्वार्टजाइट मैन भी बोला जाने लगा, ठीक है। तो यहाँ से कई चीज़ें पता चल रही हैं, जैसे इस समय क्वार्टजाइट के अनड्रेस्ड अनपॉलिश्ड टूल्स बनाते थे, जिसकी वजह से इनको क्वार्टजाइट मैन ऑफ इंडिया बोला जाने लगा। उसके बाद ये भी बोला जाने लगा कि दे बिलोंग टू द नेग्रिटो रेस। देन ये भी बोला जाने लगा कि पैलेलिथिक और प्लीस्टोसीन कोइंसाइड कर रहे थे, एंड दिस वाज स्प्रेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द प्लेन्स ऑफ इंडस एंड गंगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। फिर आगे देखो, अब ये कुछ पैलेलिथिक टूल्स हैं, अब ये छोड़ो। अब देखो मैंने बताया कि यूज़ ऑफ हैंड एक्स, क्लीवर्स, चॉपर्स, ये सब पैलेलिथिक के हैं। मिडिल पैलेलिथिक में तुम्हारा थोड़ा सा और रिफाइन किया गया था। फ्लेक्स, mainly scrapers, borers, points and blade like tools. So tools with flakes and blade like blades, फिर वो middle paleolithic में आया, और late upper paleolithic में parallel sided blades, ठीक है, parallel sided blades आने लगे थे और bone tools आने लगे। तो 2 चीज़ें याद रख लो यहाँ, parallel sided blades और bone tools, ये तुम्हारा लास्ट वाले फेज़ में आया था, that is upper paleolithic, ठीक है। तो बेसिकली पैलेलिथिक में भी इन्होंने 3 विभाजन कर दिया। अब देखो कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले स्टार्ट करो तुम प्री हिस्ट्री से। प्री हिस्ट्री में आते हैं 3 स्टोन एज, दैट इज पैलेलिथिक, मीसोलिथिक, नियोलिथिक। पैलेलिथिक 5 लाख से लेकर 10,000, मीसोलिथिक 10,000 से लेकर 6 या 7,000, एंड नियोलिथिक 6,000 से लेकर 1,000, ठीक है, दैट इज़ वन थिंग। उसके बाद पैलेलिथिक में आओ, कई चीज़ें बताई मैंने। पैलेलिथिक के अंतर्गत भी तुम्हारा लोअर पैलेलिथिक है, अपर मिडिल पैलेलिथिक है और अपर पैलेलिथिक है। अपर पैलेलिथिक जो कि सबसे लास्ट वाला है, दैट इज़ कह सकते हो कि आई थिंक 50,000 से 10,000 वाला, तो उसमें पैरेलल ब्लेड्स एंड बोन टूल्स आ गए थे। जबकि मिडिल वाले में फ्लेक्स एंड डबल साइडेड ब्लेड्स आ गए थे, नहीं फ्लेक्स आ गए थे और पॉइंटेड टूल्स आ गए थे। और बिल्कुल ही मतलब अर्ली पैलेलिथिक में यहाँ पे अनपॉलिश्ड चॉपर्स, क्लीवर्स थे, ठीक है। अब जगहों के नाम देख लो, तो सोआन एंड सोहान रिवर वैली नाउ इन पाकिस्तान, थार डेजर्ट, डिडवाना राजस्थान, भीमबेटका, बेलान वैली, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश, ये बिल्कुल ही पुराना वाला था। बीच वाले में नर्मदा एंड तुंगभद्रा रिवर वैलीज एंड पोटवार प्लेट्यू, बिटवीन पोटवार प्लेट्यू एग्जिस्ट्स बिटवीन इंडस एंड झेलम एंड सिंघाओ केव दैट इज़ नियर पेशावर, ठीक है, तो वहाँ भी मिडिल थे। एंड करनूल एंड मुछाटला, चिंतामणि, ये 2 जगहों के नाम याद रखो, दैट इज़ द लोअर पैलेलिथिक, ठीक है। मुछलता, चिंतामणि और करनूल, ये दोनों आंध्र प्रदेश में है, और ये अपर पैलेलिथिक, दैट इज़ द मोस्ट रीसेंट पैलेलिथिक। फिर मिडिल वाले के कुछ नाम बताओ। पोटवार प्लेट्यू मैंने बताया, बिटवीन इंडस एंड झेलम एंड नर्मदा एंड तुंगभद्रा, ठीक है। और सबसे पुराने वाले पैलेलिथिक, दैट इज़ लोअर पैलेलिथिक,
सबसे उसके कुछ साइट्स बताओ तो सोहान वैली एंड भीमबेटका एंड बेलान वैली। तो सोहान रिवर वैली जो कि पाकिस्तान में है, सोहान रिवर वैली पाकिस्तान में है, बेलान रिवर वैली मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है, और थार डेजर्ट या भीमबेटका भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये देख लो 5 लाख से 50,000, फिर 50,000 से 40,000 और 40,000 से 10,000। इतना वर्गीकरण वैसे आता नहीं है, बट मेंस के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अब ये जो मिडिल वाला है ना, जो मिडिल पैलेओलिथिक है, जिसमें कि पोटवार प्लेटू बताया मैंने, और नर्मदा और तुंगभद्रा ये 2 लोकेशंस बताई थी, जिसमें कि तुम्हारे पॉइंटेड टूल्स बनना स्टार्ट हो गए थे और फ्लेक्स का विकास हो गया था। तो उसमें established only in 1960 by H.D. Sankali and was named Nevasan Industry after the site of Nevasa। तो इस पूरे पीरियड में जो जगहें मिली थी वो एक जगह काफ़ी प्रोमिनेंट मिली थी, नेवासा, और वैसा ही कल्चर हर जगह मिल रहा था। सो नेवासन इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र। सो यू हैव टू लर्न फ्रॉम हियर दैट नेवासा एग्जिस्ट इन महाराष्ट्र। बाकी जो होमोसेपियंस थे, दैट इज़ द मोस्ट रिसेंट ह्यूमन बींग, वो तुम्हें इधर मिले थे अपर पैलेओलिथिक में, दैट इज़ 40,000 से 10,000 BC वाले में। यहाँ पे तुम्हें होमोसेपियंस मिले थे। तो ये सारे सवाल हो जाएंगे यहाँ से, ठीक। अब मीज़ोलिथिक में आओ। अब यहाँ पे ऐसा है कि द मीज़ोलिथिक एज represents the intermediate stage in Stone Age culture. Both Mesolithic and Neolithic cultures belong to the Holocene era. पैलियोलिथिक मैंने बताया था प्लीस्टोसीन, तो फिर मीज़ोलिथिक एंड नियोलिथिक ये होलोसीन से आ जाएंगे, होलोसीन से, ठीक है। और मीज़ोलिथिक मैंने बताया था 10,000 से 6,000 और नियोलिथिक 6,000 से 1,000, ठीक है। The Mesolithic man lived on hunting, fishing and food gathering, and in later stages also domesticated animals. One of the key aspects of Mesolithic age was a reduction in size of the well-established tool types. यहाँ पे microliths, where micro stands for miniature. So miniature stone tools usually made of crystalline silica, chalcedony और chert, both of जिसमें कि chert सबसे ज़्यादा इस्तेमाल मटेरियल किया जाने लगा था Mesolithic period में microliths बनाने के लिए। They were not only used as tools in themselves but also to make composite tools, spearheads, arrowheads and sickles after hafting them into on wooden or bone handles. Some of the other aspects of Mesolithic age are, अब देखो कुछ other aspects हैं Mesolithic age के। Pottery is absent at most Mesolithic sites but it is present in Langanaj in Gujarat. That is a pottery is absent in most and in the Kaimur region of Mirzapur. तो इस पे भी बहुत स्ट्रेट अप सवाल क्लीन बोर्ड बना देगा। पॉटरी इज़ प्रोमिनेंट इन मेसोलिथिक साइट, जबकि ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। पॉटरी इज़ एक्चुअली एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मेसोलिथिक साइट्स एक्सेप्ट 2 places, Kaimur in Mirzapur and Langanaj in Gujarat. The last phase of this age, that is Mesolithic, saw the beginning of the plant cultivation, वही लगभग 6-7 हज़ार के आसपास। द Mesolithic, तो लास्ट फेज ऑफ Mesolithic में प्लांट कल्टिवेशन आने लगा। Mesolithic era initiated rock art in prehistory. In 1867, the first rock paintings in India were discovered in Sohagi Ghat, that is Kaimur Hills, Mirzapur, यूपी में। सबसे पहले रॉक पेंटिंग्स यहाँ पे मिले थे 1867 में, पहली बार डिस्कवर किए गए थे। नाउ ओवर 150 Mesolithic rock art sites have been discovered across India, which concentration in central India such as Bhimbetka caves, Kharwar, Jaora, Kathautia, सुंदरगढ़, संबलपुर, एजूथू गुहा विच इज़ इन केरला, यहाँ पे Mesolithic रॉक आर्ट साइट्स मिले हैं। Animals dominate the scenes in these artworks at most Mesolithic rock art sites. Animals dominate the scenes and however no snakes are depicted in the Mesolithic paintings, तो ध्यान रखना। तो यहाँ पे कुछ कैवियट्स देखने को मिले थे, जैसे कि पहले ये था कि पॉटरीज तुम्हें यूजुअली पूरे Mesolithic पीरियड में नहीं देखने को मिली थी कहीं भी, एक्सेप्ट 2 places, Kaimur in Mirzapur and there's another place called Kaimur in Mirzapur and Langanaj in Gujarat, यहाँ पे नहीं देखने को मिली थी, ठीक है। और दूसरी चीज़, यहाँ Mesolithic एंड नियोलिथिक कल्चर्स की अगर बात करें, दे बिलोंग टू द होलोसीन एरा, ध्यान रखना एरा है, जबकि पैलेओलिथिक प्लीस्टोसीन में था। फिर ये बात थी कि 1867 में फर्स्ट रॉक पेंटिंग सोहागी घाट मिर्ज़ापुर से देखने को मिली थी, काइमूर हिल्स में, ठीक है। काइमूर हिल्स यूपी में है एंड मोस्ट ऑफ द रॉक आर्ट साइट्स में एनिमल्स हैव डोमिनेटेड द सीन, लेकिन कहीं भी स्नेक का चित्र नहीं दिखाया गया था, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। फिर ये देखो इस प्रकार के स्टिक लाइक ह्यूमन फिगरेंस पेंटिंग्स बनाई गई थी। बरियल्स एंड रॉक पेंटिंग्स गिव अस आइडियाज अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड ऑल्सो रिफ्लेक्ट द डिविजन ऑफ लेबर ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर।
यहाँ पे ये पॉइंट अच्छा है कि पेंटिंग से हमें डिवीजन ऑफ लेबर का भी दृश्य देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट मेसोलिथिक साइट्स की बात करें, सबसे ज़्यादा सवाल यहीं से बनते हैं। तो देखो यहाँ लिखना पड़ जाएगा मेसोलिथिक साइट्स के नाम अगर बताएं। देखो यहाँ एक हो गया बगौर, फिर बगौर सबको पता है राजस्थान में वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड बेस्ट डॉक्यूमेंटेड मेसोलिथिक साइट्स बगौर हो गई। इसके बाद आदमगढ़ एंड बगौर प्रोवाइड अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, तो इसको साथ ही में लिखते हैं, बगौर एंड आदमगढ़। ठीक है, यहाँ पे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का अर्लीस्ट एविडेंस मिला है। इसके बाद और बताओ, जैसे साउथ ऑफ रिवर कृष्णा, तिन्नेवेली इन तमिलनाडु, बीरभानपुर इन वेस्ट बंगाल, ये भी कैसी साइट है, मेसोलिथिक साइट है। बीरभानपुर ये वेस्ट बंगाल में है, और सराय नहर ये इलाहाबाद में पड़ेगी, और महादहा। तो ये जो 4 हैं जगहें, ये बहुत सम ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट पॉपुलर मेसोलिथिक साइट्स हैं। ठीक है, जहाँ पे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का अर्लीस्ट एविडेंस बगौर आदमगढ़ से मिला है। ठीक है, अब देखो सराय नहर से क्या मिला है, महादहा व बोन आर्टिफैक्ट्स आर फाउंड इंक्लूडिंग एरोहेड्स एंड बोन ऑर्नामेंट्स, तो बोन ऑर्नामेंट्स महादहा से मिला है। ठीक है, ये हो गया। फिर नियोलिथिक फूड प्रोड्यूसिंग स्टेज की बात करें तो 8000 से 6000 बोला जाता है इसको। अच्छा, एक चीज़ यहाँ देखो, इन नहीं 8000 से 6000 कुछ और है। इन नॉर्दर्न इंडिया द नियोलिथिक emerged around 8000 to 6000 BC. At some places in south and eastern India it is as late as 1000 BC, तो बहुत बाद में आया था। पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया में नियोलिथिक एज काफ़ी बाद में आया था, जबकि नॉर्दर्न इंडिया में नियोलिथिक एज जल्दी आ गया था। ठीक है, इट्स सिग्निफिकेंस इन प्री हिस्ट्री कैन बी गॉट्स बाय द फैक्ट दैट वी गॉट इन चाइल्ड टर्म्ड द नियोलिथिक फेज एज नियोलिथिक रेवोल्यूशन। तो नियोलिथिक फेज़ को रेवोल्यूशन इन्होंने बोला था, गॉर्डन चाइल्ड ने। इट इंट्रोड्यूस्ड लॉट ऑफ इनोवेशंस सच एज एडवेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन आया, इनोवेशंस इन टेक्नोलॉजीज़ आया, इन्वेंशन ऑफ पॉटरी भी आ गया था यहाँ पे। एंड ब्लैक बर्निश्ड वेयर या सिंपली ब्लैक वेयर बोल लो, या ग्रे वेयर बोल लो, या मैट इम्प्रेस्ड वेयर बोल लो, 3 प्रकार की हैं। मैट इम्प्रेस्ड वेयर, ब्लैक वेयर, मैट इम्प्रेस्ड वेयर एंड ग्रे वेयर। द नियोलिथिक एरा कम्युनिटीज़ फर्स्ट मेड पॉटरी बाय हैंड। और चौथा, टेक्नोलॉजी इनोवेशन, एमर्जेंस ऑफ सेल्फ सफिशिएंट विलेज कम्युनिटीज़। एंड फिर डिवीजन ऑफ लेबर बेस्ड ऑन जेंडर एंड एज। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सिबिटेड नियोलिथिक साइट्स पहले ये देख लेते हैं। बुरजा होम, गुफरा खाल, ये दोनों के दोनों जम्मू एंड कश्मीर में हैं, ये नियोलिथिक हैं। ठीक है, और मस्की, ब्रह्मगिरी, पिकली हाल एंड पिकली हाल, बूढ़ी हाल, ये सारे के सारे नियोलिथिक हैं। ठीक है, और पय्यमपल्ली तमिलनाडु एंड उटनूर इन आंध्र प्रदेश, गारो हिल्स इन मेघालय, चिरांद इन बिहार, ये सब नियोलिथिक बता रहा हूँ मैं। फिर ये देखो मेहरगढ़, द अर्लीस्ट नियोलिथिक साइट नोन एज द ब्रेड बास्केट ऑफ बलूचिस्तान, अ प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, इस पर भी सवाल बन सकता है। कोल्डेहवा इन बिलान वैली, ये भी नियोलिथिक है। इनफैक्ट यूनिक इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ 3-fold नियोलिथिक, चैल्कोलिथिक एंड आयरन एज सेटलमेंट्स, तीनों ही यहाँ पे गुजर गई थी टाइम के साथ। तो दैट इज़ कोल्डेहवा इन बिलान वैली। ठीक है, अब ये देख लो क्या है कि फूड प्रोडक्शन आया नियोलिथिक में। द नियोलिथिक मैन कल्टिवेटेड लैंड एंड ग्रू फ्रूट्स एंड कॉर्न लाइक रागी एंड हॉर्स ग्राम, कुलाठी। तो कॉर्न आया, फ्रूट्स आया, और हॉर्स ग्राम आया नियोलिथिक में। कैटल, शीप और गोट्स डोमेस्टिकेट किए गए थे। देन इनोवेशंस इन टेक्नोलॉजी में यहाँ पे पॉलिश्ड टूल्स आ गए थे, एंड दे डिपेंड ऑन द पॉलिश्ड stones other than quartzite for making tools. The use of cells was especially important for ground and polished hand axes. Based on the types of axes used, 3 important areas of Neolithic settlements can be identified. अब ये छोड़ो, फिर इन्वेंशन ऑफ पॉटरी आ गया। मैंने अभी बताया मैट इम्प्रेस्ड वेयर इज़ अ फीचर ऑफ नियोलिथिक, या ब्लैक बर्निश्ड वेयर कह सकते हो, या ग्रे वेयर कह सकते हो। फिर एमर्जेंस ऑफ सेल्फ सफिशिएंट विलेज कम्युनिटीज़ आ गया। इन द लेटर फेजेस ऑफ नियोलिथिक people led a more settled life. They lived in circular and rectangular houses made of mud and reed. They also knew how to make boats and could spin cotton and wool and weave cloth. तो नाव बना सकते थे, स्पिन कॉटन, वीव क्लॉथ, ये सब नियोलिथिक का टेक्नोलॉजी वाला पार्ट आ गया। सेल्फ सफिशिएंट विलेज कम्युनिटी वाले पॉइंट में लिख सकते हो, मड और रीड के बने हुए घर, सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर इन शेप। दे कुड वीव क्लॉथ, स्पिन कॉटन एंड मेक बोट्स। देन इन्वेंशन ऑफ पॉटरी के बारे में लिख सकते हो, और सेल्स का इस्तेमाल किया जाने लगा है एक्स में, और हॉर्स ग्राम का काफ़ी प्रोडक्शन किया गया। डिवीजन ऑफ लेबर बेस्ड ऑन जेंडर, एज सोसाइटी वॉज प्रोग्रेसिंग द नीड फॉर एडिशनल लेबर वॉज रिकग्नाइज्ड एंड दस लेबर वॉज प्रोक्योर्ड फ्रॉम अदर नॉन किन ग्रुप्स टू। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एक्सिबिटेड नियोलिथिक साइट्स अलॉन्ग विद अदर यूनिक आस्पेक्ट्स। अब जैसे मैंने अभी बताया बुरजाहम, गुफरा खल, फिर चिरांद हो गया। ठीक है, कोल्डेहवा में तीनों गुजर गए
मस्की ब्रह्मगिरी उटनूर, पिकली हाल, बूढ़ी हाल, ये सब नियोलिथिक हैं, ठीक है। इनफैक्ट बूढ़ी हाल में कम्युनिटी फूड प्रिपरेशन, कम्युनल फीस्ट दिखाया गया था बूढ़ी हाल में, ठीक है। और पिकली हाल में कैटल हर्डिंग का प्रूफ मिला है। तो पिकली हाल में कैटल हर्डिंग, बूढ़ी हाल में कम्युनल फीस्ट्स। और मस्की और ब्रह्मगिरी दोनों कर्नाटका में है। इनफैक्ट बूढ़ी हाल एंड पिकली हाल ये सब के सब चारों कर्नाटका में है। और देखो चिरांदिन बिहार, कंसिडरेबल यूज़ ऑफ बोन इम्प्लीमेंट्स स्पेशली दोज मेड ऑफ एंटलर्स। पयमपल्ली इन तमिलनाडु। उटनूर इन आंध्र प्रदेश, ये भी नियोलिथिक है। मेहरगढ़ द अर्लीस्ट नियोलिथिक, ब्रेड बास्केट बलूचिस्तान भी बोलते हैं इसको। और कोल्डेवा बता दिया मैंने। फिर अब ये है एक जगह है चौपानी मांडो, आई थिंक इट इज़ इन बेलान, नहीं चौपानी मांडो देख लेना कहाँ पे है, आई थिंक बेलान वैली में ही है। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द यूज़ ऑफ पॉटरी, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ यूज़ ऑफ पॉटरी कहीं तो अभी पढ़े थे यार, यहाँ नहीं है। द फर्स्ट मेड ऑफ पॉटरी बाय हैंड एंड देन विद द हेल्प ऑफ पॉटर्स व्हील। तो देयर पॉटरिंग, ठीक है, ये 3 प्रकार की। तो वो जगह याद कर लो, चौपानी मांडो कॉमा बेलान वैली, जहाँ पे अर्लीस्ट यूज़ ऑफ या एविडेंस ऑफ यूज़ ऑफ पॉटरी मिला है। नाउ बेलान वैली है कहाँ? बेलान वैली ऑन द नॉर्दर्न स्पर्स ऑफ द विंध्यास एंड द मिडिल पार्ट ऑफ द नर्मदा वैली। एविडेंस ऑफ ऑल 3 प्लेसेस ऑफ पैलेलिथिक, मीसोलिथिक एंड नियोलिथिक, ये वही है। बेलान वैली में भी तीनों मिला है, कोल्डेवा में भी तीनों मिला है, यहाँ लिखा है, कहाँ गया, कोल्डेवा इन बेलान वैली। So actually both are same thing, unique in terms of presence of threefold Neolithic, Chalcolithic and Iron Age। तो कोल्डेवा में नियोलिथिक, चैल्कोलिथिक एंड आयरन एज, और बेलान वैली में ये पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक एंड नियोलिथिक सब साथ ही में मिल गया था। फिर चैल्कोलिथिक एज, कॉपर स्टोन एज आती है। और इसका ये समय काल, इस पर भी सवाल बनता है, ये देख लो 3000 से लेके 5000 BCE, ठीक है। तो पहले इतना रखें क्या। So we are back after the break. So Chalcolithic and Copper Stone Age, actually Chalcolithic means copper stone, तो ये 3000 से 500 BCE तक चलता है। and the Chalcolithic age marked the emergence of the use of metal. Chalcolithic age marked the emergence of use of metal along with the stone tools. The first metal to be used was copper, though they also occasionally used bronze. Technologically, Chalcolithic age largely applies to the state settlements of pre-Harappans, but in various parts of country it appears after the end of Bronze Harappa culture. तो देखो इसमें भी 2 कॉन्सेप्ट है। टेक्नोलॉजिकली देखा जाए तो चैल्कोलिथिक प्री हरप्पन फेज़ को माना जाता है, लेकिन कुछ जगह पर इंडिया में आफ्टर द ब्रॉन्ज हरप्पन कल्चर कुछ जगह देखने को मिलता है, ठीक है। तो बाय एंड लार्ज क्या सहमति है कि चैल्कोलिथिक प्री हरप्पन आया गया था, 3000 से स्टार्ट हो गया था, लेकिन कुछ जगहों पे ये ब्रॉन्ज हरप्पन कल्चर के बाद आया था। नाउ सम चैल्कोलिथिक कल्चर्स आर कंटेम्प्रेरी ऑफ हरप्पन कल्चर एंड सम प्री हरप्पन कल्चर्स, दो इट इज़ पॉसिबल टू से दैट मोस्ट चैल्कोलिथिक कल्चर्स आर पोस्ट हरप्पन। सबसे ज़्यादा देखा जाए तो फिर वो पोस्ट हरप्पन ही है, ठीक है, लेकिन कुछ कोइंसाइड कर रहे थे एंड कुछ प्री हरप्पन भी है। तो वी कैन से दैट चैल्कोलिथिक का जो स्पैन है, ओवरऑल विड्थ है, क्रोनोलॉजिकली वो ज़्यादा है हरप्पन कल्चर से, ठीक है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो वो पहले स्टार्ट हुआ था, साथ में चला था और बाद तक टिका भी था। दैट इज़ चैल्कोलिथिक स्टेज। सम प्रोमिनेंट साइट्स ऑफ प्री हरप्पन चैल्कोलिथिक कल्चर आर गणेश्वर, which is a place near Khetri mines of Rajasthan, and Kalibangan, which is again in Rajasthan, and Banawali, which is in Haryana, and Kot Diji, that is in Sindh, Pakistan। अब इसमें क्या निमोनिक बना सकते हो, देखो के और बी, कालीबंगन और बनावली, ये दोनों याद हो जाएगा। एक गणेश्वर याद रखना है, दैट आई एम हियरिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड कोट डीजी, दैट इज़ इन सिंध, पाकिस्तान, ठीक है। तो ये ऐसे कर लो, के फॉर कालीबंगन, के फॉर कोट डीजी, और उसके बाद बनावली हो गया और गणेश्वर हो गया। नाउ Chalcolithic people domesticated cows, sheep, goats, pigs and buffaloes and hunted deer. They ate beef but did not like pork. तो ये बीफ खाते थे Chalcolithic. They did not like pork and they domesticated cows, sheep, goats, pigs. तो देखो pigs भी domesticate किए थे, and they hunted deer. They did not like pork and not acquainted with horses. It is rather interesting to note that domesticated animals were slaughtered for food and not milked for dairy products. This practice still continues among the Gond people of Bastar. तो ये Gond people of Bastar में आज भी चला आ रहा है। The people of Chalcolithic phase produced wheat and rice as their staple. तो wheat and rice, और किनको hunted deer and they did not like pork.
लेकिन मटन बीफ वो खाते थे, एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स बट दे डिड नॉट यूज़ इट फॉर डेयरी, जो कि आज भी बस्तर एरिया में गोंड पीपल करते हैं. Wheat and rice and their staple, and bajra, several pulses such as lentil, black gram, green gram, and grass pea, while those living in eastern regions lived on fish and rice. They practiced more slash and burn और झूम cultivation भी करते थे ये लोग, Chalcolithic वाले लोग. However, neither the plow nor the hoe has been found. अब ये काफ़ी विचित्र बात है कि झूम कल्टिवेशन कर रहे हो भाई Chalcolithic पीपल, ठीक है, और सिर्फ झूम कल्टिवेशन क्यों, दे आर वीट और राइस उनका स्टेबल था, हॉर्स नॉट हॉर्स बट वेरियस लेंटिल्स, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, ये सब भी उगा रहे थे, बट इनके पास प्लो नहीं दिखाई पड़ा, नीदर प्लो नॉर हो at any side of this period. They used different types of pottery, of which black and red pottery was the most popular. अब ये Chalcolithic का थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जैसे हम लोग देखा था कि मैट इम्प्रेस्ड वेयर या ब्लैक बर्निश्ड वेयर या ग्रे वेयर, ये सब तुम्हारा कब था ये, आई थिंक जो सबसे अर्लियर वाला था पैलियोलिथिक में था या नियोलिथिक में, नियोलिथिक में चौपानी मांडो बिलान वैली से स्टार्ट हुआ था ना, पहला एविडेंस ऑफ पॉटरी मिला था वहाँ पे. हाँ, तो वहीं पे जब पहला एविडेंस है तो फिर वहीं पे तो मिला होगा ना ग्रे वेयर और मैट इम्प्रेस्ड वेयर वगैरह. खैर उससे डिफरेंट है ये. दे यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉटरी, ब्लैक एंड रेड पॉटरी या ब्लैक रेड BRW कह सकते हो. दिस वॉज मेड यूजिंग द पॉटर्स व्हील एंड वॉज पेंटेड विद वाइट लाइन डिज़ाइन. Equally interesting is the fact that female potters did not use potter's wheel, only men did. अब इस पे तो डायरेक्ट MCQ बनेगा. Chalcolithic में only female potters did not use the potter's wheel. Only men used the potter's wheel. Other distinguished features of people in Chalcolithic are as follows. They are not acquainted with burnt brick. Chalcolithic में burnt brick, not acquainted with burnt brick, and generally जबकि although it coincided with the Harappan culture which was aware of the burnt brick, the Chalcolithic people were not aware of the burnt brick. यहाँ पे pottery भी अलग थी, black red ware थी, and यहाँ पे एक pottery को लेके विचित्र बात थी कि female did not use the potter's wheel and generally lived in thatched houses made of mud bricks. तो ये mud bricks में रहते थे Chalcolithic, which was a little different than Harappan, coinciding Harappan culture जहाँ पे पक्के bricks थे. They were not aware of the पक्का bricks, that is burnt bricks. Their economy was village-based economy, जबकि इंडस वैली या हरपन थोड़ा सा अर्बन था. Chalcolithic era people did not know the use of writing. They did not know the use of writing. ये भी Chalcolithic का विचित्र फीचर है. Their villages were small with huts closer to each other. Chalcolithic age people cooked their food, and yes, I think ये भी याद करने वाली बात है. Then small clay images of earth goddesses have been found from Chalcolithic sites. It is thus possible to say that they venerated mother goddess का concept था. Chalcolithic people were fond of ornaments and decoration. ये भी मिला. The women wore ornaments of shell and bone and carried finely worked combs in their hair. The bull was probably the symbol of their religious cult based on the stylized bull terracottas of Malwa in Rajasthan. तो bull एक religious cult के रूप में देखने को मिल सकता है because मालवा और राजस्थान में काफ़ी बुल के छोटे छोटे टेराकोटा फिगरेंस मिले हैं Chalcolithic कल्चर में. ठीक है, तो ये हो गया. एंड द Chalcolithic पीपल वर एक्सपर्ट कॉपर स्मिथ्स एंड दे न्यू द आर्ट ऑफ कॉपर स्मेल्टिंग एंड वर गुड स्टोन वर्कर्स एज वेल. तो ये क्वारिंग हो गया या कॉपर स्मेल्टिंग वगैरह हो गया, इसमें माहिर थे. दे मैन्युफैक्चर्ड बीट्स ऑफ सेमी प्रेशियस स्टोन्स सच एज कार्नेलियन, स्टेटाइट, क्वार्ट्ज क्रिस्टल. दे न्यू स्पिनिंग एंड वीविंग. अब कार्नेलियन एंड स्टेटाइट दैट वाज अवेयर, इसकी अवेयरनेस थी, स्पिनिंग एंड वीविंग की अवेयरनेस थी. Chalcolithic settlements have been found in south eastern Rajasthan, western MP, western Maharashtra as well as other parts of southern and eastern India. There are definite regional differences in terms of cereals produced and consumed, pottery made and so on. For instance, eastern India produced rice whereas western India cultivated barley and wheat. In Maharashtra the dead were buried in the north-south direction, whereas in the south India they were buried in the east-west direction. अब ये भी एक Chalcolithic फीचर है. इन ईस्टर्न इंडिया फ्रैक्शनल बरियल वॉज प्रैक्टिस्ड. तो 3 प्रकार के बरियल मैंने को मिल गए Chalcolithic में. साउथ में ईस्ट वेस्ट, महाराष्ट्र में नॉर्थ साउथ, और ईस्ट में फ्रैक्शनल बरियल. इन्फेंट मोर्टैलिटी वॉज वेरी हाई अमंग द Chalcolithic पीपल एज एविडेंट फ्रॉम द बरियल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन वेस्टर्न महाराष्ट्र. तो ये इसका भी एक जिक्र मिल गया वेस्टर्न महाराष्ट्र में. वन कैन नोट दैट द बिगनिंग्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज़ इन Chalcolithic सोसाइटीज़ as chiefs who lived in rectangular houses dominated others who lived in round huts. ये भी एक अच्छा फीचर मिल गया. काफ़ी सारी बातें पता चल रही हैं यहाँ से. ठीक है,
देन सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एक्सकेवेटेड चैल्कोलिथिक साइट्स देख लो, अहर, जिलंद, बनास वैली, ठीक है, बनास वैली, अहर एंड नेवासा जोरवे। तो नेवासा जोरवे, नवदा तोली, नवदा तोली दायमाबाद, ये दोनों तो पक्के याद रखो, नवदा तोली एज वेल एज दायमाबाद। एंड दायमाबाद इज़ द लार्जेस्ट जोरवे कल्चर साइट इन द गोदावरी वैली, फेमस फॉर द रिकवरी ऑफ ब्रॉन्ज गुड्स। फिर इनाम गाँव, ये भी महाराष्ट्र में है, ठीक है। चिरांद, वी हैव ऑलरेडी रेड दैट, इन बिहार। कायत, अब ये कायत पे एक सवाल हमने देखा था, दैट इज़ अ प्री हड़प्पन एलिमेंट्स इन पॉटरी। कायत इज़ अ चैल्कोलिथिक एरिया, ठीक है। एंड मालवा, रिचेस्ट चैल्कोलिथिक सेरामिक्स, स्पिंडल वगैरह यहाँ मिले थे, और ईरान एमपी में। तो ये कुछ हैं, ये कुछ तुम्हारे जगहें हैं, फिर से बता दे रहे हैं। देखो, नवदा तोली, दायमाबाद, इनाम गाँव, नेवासा, और क्या हो गया, मालवा तो ठीक है, कायत मालवा भी याद रखो, कायत मालवा में ईरान। और ऊपर भी थे कुछ, ऊपर नहीं थे ना, बनास वैली, जिलंद, अहर, ये सब हो गया। अब कुछ की डिफरेंसेस जो मैंने अभी बता रहा था कि जो हड़प्पन से डिफरेंट थे चैल्कोलिथिक के, वो देख लो। जैसे कि चैल्कोलिथिक प्राइमरीली रूरल थे, जबकि हड़प्पन अर्बन थे। चैल्कोलिथिक मोस्टली कॉपर का इस्तेमाल करते थे, जबकि ये लोग ब्रॉन्ज का हड़प्पन इस्तेमाल करते थे। और चैल्कोलिथिक मोस्टली लिव्ड नियर द लैंड, हिली लैंड और रिवर्स, जबकि हड़प्पन अटेन्ड अर्बनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोड्यूस फ्रॉम फ्लड प्लेन्स इन इंडस वैली। तो चैल्कोलिथिक, ये जितने भी नाम मैंने बताए, जैसे ईरान हो गया, कायत हो गया, मालवा हो गया, दायमाबाद, इनाम गाँव, नवदा तोली, नेवासा, यहाँ पे कुछ ना कुछ टोपोग्राफी हिली लैंड या नदियों के पास मिल रहा है, जबकि ऐसा ज़रूरी नहीं है हड़प्पा के लिए। तो एक बार फिर से ये जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस बिटवीन चैल्कोलिथिक एंड हड़प्पा था, ये देख लेते हैं। देखो, ये 3000 से 500 के बीच आया था। चैल्कोलिथिक एज मार्क्ड द इमर्जेंस ऑफ द यूज़ ऑफ मेटल अलॉन्ग विद स्टोन रूल्स, ठीक है। एंड द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड वाज कॉपर, दे ऑल्सो ओकेजनली यूज्ड ब्रॉन्ज। अब मैंने बताया चैल्कोलिथिक पहले से स्टार्ट हुआ था, कोइंसाइड किया हड़प्पा से और बाद तक भी गया था, ठीक है। सम चैल्कोलिथिक cultures are contemporary of Harappan culture and some pre-Harappan cultures. Some of the pre-Harappan cultures, though it is possible to say that most of the Chalcolithic cultures are post-Harappan, ठीक है। फिर अब ये some prominent sites of pre-Harappan Chalcolithic, अब ऐसा नहीं पूछेगा कि pre-Harappan, post-Harappan और coincide वाले बताओ, आगे चल के हमने सिर्फ Chalcolithic sites के नाम याद रखे हैं, तो ठीक है। They hunted deer, domesticated pigs along with cows, sheep, buffaloes, goats, and they ate beef but did not like pork. They were also not acquainted with horses, and the animals were slaughtered for food and not milked. तो ये प्रथा गोंड पीपल ऑफ बस्तर में अभी भी चल रही है। चैल्कोलिथिक फेस प्रोड्यूस्ड वीट एंड राइस, जो हम कल्टिवेशन करते थे, और लेंटिल और ग्रीन पी, ग्रास पी, ये सब उगाते थे। लेकिन विचित्र बात यह है कि नीदर प्लो नॉर हो हैज़ बीन फाउंड। इनकी पॉटरी ब्लैक एंड रेड वेयर थी, एंड पॉटर्स व्हील का इस्तेमाल फीमेल नहीं करते थे, ओनली मैन करते थे। कुछ खास डिफरेंसेस या यूनिक फीचर्स ऑफ चैल्कोलिथिक एज की बताएं तो दे वर नॉट accustomed to पक्का burnt bricks. They made houses made of mud bricks, and village based rural economy थी। and Chalcolithic people, I think they could write, no sorry, they did not know the use of writing, वो लिख नहीं पाते थे, and they लिख नहीं पाते थे लेकिन खाना पका लेते थे। और mother goddess ornaments and decoration देखने को मिला था in the form of women ornaments, and bull was some sort of religious cult in Malwa in Rajasthan area। तो ये कुछ features हैं। Carnelian and Statite, spinning and weaving, and here जैसे इंडिया कल्टिवेटेड, जैसे फॉर इंस्टेंस ईस्टर्न इंडिया प्रोड्यूस्ड राइस, वेस्टर्न इंडिया कल्टिवेटेड बार्ली एंड वीट, एंड महाराष्ट्र में नॉर्थ साउथ, साउथ इंडिया में ईस्ट वेस्ट, एंड ईस्टर्न इंडिया में फ्रैक्शनल बरियल वाज प्रैक्टिस्ड इन द चैल्कोलिथिक कल्चर। दैन इन्फेंट मोर्टालिटी काफ़ी ज़्यादा थी, एंड सोशल इनइक्वालिटीज़ ज़्यादा थी। जैसे चीफ्स रेक्टेंगुलर हाउसेस में रहते थे, हु डोमिनेटेड अदर्स हु लिव्ड इन द राउंड हट्स, ठीक है। तो ये हो गया। फिर कुछ एरियाज़ हैं, जैसे अहर है, जिलंद है, बनास वैली है, और यहाँ नीचे लिखा है दायमाबाद, नवदा तोली, नेवासा, इनाम गाँव, कायत, मालवा, ईरान। फिर ये कुछ डिफरेंसेस हैं, ये बता ही दिया मैंने। अब ये जैसे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए और कॉलम बी है, जैसे पैलेलिथिक, नियोलिथिक और चैल्कोलिथिक। अगर ये देखो फोर्थ का सी जाएगा मीजोलिथिक से माइक्रोलिथ्स, और उसके बाद चैल्कोलिथिक में तुम्हारा कॉपर जाएगा, 3 का ए, 4 का सी है कहीं,
3 का ए, 3 का ए, 4 का सी, तो सी ऑप्शन लग रहा है, हाँ ये हो जाएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई विच आर स्पेसिफिक टू द नियोलिथिक पीरियड। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड ग्रोइंग ऑफ वाइल्ड वैराइटीज ऑफ क्रॉप्स। पीपल यूज्ड कॉपर एंड ब्रॉन्ज टू मेक अ लॉट ऑफ टूल्स, नियोलिथिक की बात हो रही है। मेकिंग ऑफ स्पेशलाइज्ड टूल्स बाय फ्लेकिंग स्टोन्स which were pointed in one end। ये तो नियोलिथिक की अगर बात करें, पीपल यूज्ड कॉपर एंड ब्रॉन्ज टू मेक अ लॉट ऑफ टूल्स, नहीं ऐसा नहीं है। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड ग्रोइंग ऑफ वाइल्ड वैराइटीज ऑफ क्रॉप्स, हाँ ये तो लग रहा है मुझे, ठीक है 1 सही है। एंड मेकिंग ऑफ स्पेशलाइज्ड टूल्स बाय फ्लेकिंग स्टोन्स विच वर पॉइंटेड इन वन एंड, ये 3 भी सही लग रहा है। पीपल यूज्ड कॉपर एंड ब्रॉन्ज टू मेक अ लॉट ऑफ टूल्स, वो मुझे नहीं लग रहा। 1 and 3 है तो हाँ सी लगाऊंगा मैं, आई विल चेक लेटर। देन मैच द हिस्टोरिकल पीरियड एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स। अब देखो अभी मैंने पढ़ा था कि देखो पैलेयोलिथिक तो बीमिड का सही है, और मीज़ोलिथिक बताएं तो मीज़ोलिथिक अगर हम बताएं, देखो चैल्कोलिथिक तो अभी हमने बताया कि नवदा तोली जाएगा, 4th का सी, ठीक है, तो 4th का सी कहीं है इसी में आ रहा है, ये है ना। और बाकी आई थिंक बीमिड का तो ए, फर्स्ट का ए जाएगा, 4th के सी वाले के साथ फर्स्ट का ए नहीं है, फर्स्ट के ए यहाँ पे है। अच्छा, तो पैलेयोलिथिक तो बीमिड का जाएगा, ठीक है ना। फिर मीज़ोलिथिक मुझे लग रहा है ऐसा कि मीज़ोलिथिक जो है, मीज़ोलिथिक में जाना चाहिए बेलान, तो 2 का सी बता रहा है, ये 2 का सी यानी कि नहीं फर्स्ट का ए। देखो इतना मुझे पता, अभी मैंने पढ़ा है कि चैल्कोलिथिक में नब्दा तोली जाना ही जाना है, तो 4th यहीं आ रहा है, बट देन फर्स्ट का बी जा रहा है, पैलेयोलिथिक में बेलान, राइट। चलो ठीक है, फर्स्ट पैलेयोलिथिक बेलान कर देते हैं, ठीक है। 1 का बी, देन मीज़ोलिथिक शुड गो विद बीमिड का, हाँ सेकंड का ए, फर्स्ट का बी सेकंड का ए, और थर्ड नियोलिथिक शुड गो विद मेहरगढ़ क्योंकि कल्टिवेशन वगैरह, ठीक है। थर्ड का डी, एंड देन ठीक है, ये आंसर है, ये वाला है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नियोलिथिक एज। यूज अ वेरी फाइनली फ्लेक्ड स्मॉल stools, blades and burins, ठीक है। डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल, हॉर्सेज एंड अदर फार्म एनिमल्स, ठीक है। पेंटिंग एंड डेकोरेटिंग पॉटरी, पेंटिंग एंड डेकोरेटिंग पॉटरी आई थिंक आ चुका था, हाँ तीनों ही आ जाएगा। डोमेस्टिकेशन हो गया, हाँ ठीक है, तीनों आ जाना चाहिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द अप्रोप्रिएट वन। टेक्नोलॉजिकली द Chalcolithic stage refers to pre-Harappans, but in various parts of the country it appears after the end of Bronze Harappan culture. That is correct. And all Chalcolithic cultures are not necessarily pre-Harappan cultures, but all pre-Harappan cultures are necessarily नहीं ये भी गलत है। All Chalcolithic cultures are necessarily pre-Harappan cultures, but pre-Harappan cultures ये भी गलत बात है, तो केवल इसमें यही सही है, ठीक है। Then which of the following statements is correct regarding prehistoric art? तो ये पैलेयोलिथिक एंड मीज़ोलिथिक पीपल प्रैक्टिस्ड पेंटिंग, प्रीहिस्टोरिक आर्ट डू नॉट अपीयर इन द, ये तो गलत है। मैनी फिगर्स रिगार्डिंग द सोलर सिस्टम वर पेंट, गलत। रिलीजियस बिलीव्स ऑफ द पीपल काइंड ऑफ ट्रू, बट आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट। पैलेयोलिथिक एंड मीज़ोलिथिक पीपल प्रैक्टिस्ड पेंटिंग, ठीक है। फिर विच वाज द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन, सो आई थिंक दैट वाज, व्हाट वाज दैट, कॉपर या ब्रॉन्ज, आई थिंक इट वाज कॉपर, ठीक है। एंड with which of the following periods do we associate microlith, तो ये तो मीज़ोलिथिक से जाएगा, ठीक है। एंड 9th का with which period do we associate मेगालिथ्स तो नियोलिथिक जाना चाहिए, ठीक है। देन what was the earliest metal used for, अर्लीस्ट मेटल किस लिए यूज़ किया गया था, वो टूल्स बनाने के लिए ना। पॉट मेकिंग, क्लियरिंग जंगल्स, मेकिंग व्हील्स, हाउस बिल्डिंग। दिस क्वेश्चन इज़ इंटरेस्टिंग। क्लियरिंग जंगल्स, मेकिंग व्हील्स, house building and pot making, I'll leave that. The first animals to be domesticated during a stone age, तो पहला क्या स्टोन एज के समय क्या था, स्टोन एज में मीज़ोलिथिक भी आता है, नहीं देखो हॉर्स तो नहीं होगा, शीप और गोट लग रहा है, बट शीप गोट और हॉर्स, शीप एलिफेंट डॉग नहीं होगा, डॉग्स हॉर्सेस गोट, तो ये दोनों तो चले गए बी और सी, बचा एलिफेंट डॉग शीप और डॉग्स गोट एंड शीप, जिसमें डॉग दोनों में कॉमन है, तो डॉग तो होना ही चाहिए, आई विल गो विद ए। नोमैडिक मैन स्टार्टेड सेटलिंग इन, देखो सेटलमेंट पैलेयोलिथिक के बाद आया, मीज़ोलिथिक में जब कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया था तब,
Man moved from food gathering to food producing in the food producing Mesolithic में हुआ था मेरे ख्याल से. Food producing towards the end of the, तो क्या बताएं, Neolithic होता है. Food gathering to food producing, man moved from. अब onset देखा जाए तो फिर onset अगर देखा जाए, I will go with Neolithic. The greatest innovation of man in Paleolithic age was Paleolithic, I think discovery of fire होना चाहिए. ठीक है. During the Chalcolithic age, the only metal known to man was copper. ठीक है. Which one of the following statements is not correct? Chalcolithic man in India were acquainted with burnt bricks. No. Not correct पूछा है तो A तो definitely सही है. Paleolithic man in the later stages knew about fire. Yes. And Bhimbetka caves are a treasure house of prehistoric paintings. Yes. Man came to practice agriculture in the Neolithic era. That is also correct. So not correct पूछा है तो फिर A हो जाएगा because the Chalcolithic man were not acquainted with burnt bricks. फिर ये आहरन जिलंद, ये तुम्हारा जाएगा Chalcolithic. मोहनजोदारो हड़प्पा सही है. बुर्जा होम एंड देखो बागोर, आई थिंक बागोर इज़ Mesolithic, बुर्जा होम इज़ Neolithic. तो 1 2 3 4 ही चला जाएगा. ABCD सही लिखा हुआ है. ABCD ये C ऑप्शन. Then consider the following statement regarding the economy of the Neolithic. Based on agriculture and animal domestication, yes, the Neolithic man knew about iron. आयरन के बारे में Neolithic man नहीं, मुझे नहीं लगता. आयरन के बारे में नहीं था तो केवल ये only one जाएगा. And consider the following statement regarding Chalcolithic people. Chalcolithic communities traded and exchanged materials with other contemporary communities. हाँ, क्यों नहीं हो सकता. Large settlements like Ahar, Jilan, Navdatoli, Iran, Rangpur, Daimabad and Amgaon served as major centers of trade and exchange. Okay, सही है. Ahar people settled close to copper source, supplied copper tools and objects to other contemporary communities in Malwa in Gujarat. सही लग रहा है. तो all of the above सही है. फिर last question देख लो. Consider the following statement regarding the status of technology during Chalcolithic. Were expert coppersmiths and had made considerable progress in metal technology. Yes, the painted pottery was well made. Chalcolithic में pottery was well made. I think दोनों सही है. Consider the following statement regarding Chalcolithic cultures in India. Some of the Chalcolithic cultures were contemporary with the Harappan culture and others were post. Yes. The Chalcolithic culture is characterized by painted pottery, usually red and black. वही ना, black red वेयर बोल तो रहा था मैं. ये भी सही है. It was urban as compared to a rural Harappan. तो ये गलत है. So 1 and 2 is सही. Then which of the following pairs is incorrectly matched? Lower Paleolithic, hand axe and cleaver industries. देखो वहाँ पे Middle Paleolithic tools made on flakes, which is correct. Upper Paleolithic tools made on blades and burins. Second and third तो सही है. पहला भी सही लग रहा है. Cleaver. Lower Paleolithic, hand axe मुझे नहीं लगता. मुझे 2 and 3 तो लग रहा है. 2 and 3 है ही नहीं. I'll leave that. Consider the following statement regarding tools and technology of Middle Paleolithic culture. Is characterized basically by the flakes obtained by striking them out of pebbles. ठीक है, सही है. Middle Paleolithic, ठीक है, सही है. The tools included various kinds of scrapers, borers and knives. Yes, दोनों ही सही है. And which of the following archaeological sites of Paleolithic, Mesolithic and Neolithic remains? So that is Bilan Valley. ठीक है. अब आंसर देख लो उल्टा. 24th का A, 23 का B सही है, 23 का B सही है, 22 का D, 21 का B, 22 का D, 22 मैंने छोड़ दिया था और 21 का B अगेन सही है. और देख लो फिर 20th का B, 19th D, 20th B, 19D, 20B, 20 का B होना चाहिए. यस. 19th का D सही है. और इधर देख लो क्या है. 18 का तुमने A लगाया है. 17C 18A, 17C 18A है तो 17C 18A. वेरी गुड. फिर 16 का यहाँ पे 16A या 15C और 16A, 15C 16A, 15C 16A. वेरी गुड. देन 14th का C है, 13th का D है और 12th का B है. या यूँ कहें कि 10th से लेके 10th तुमने छोड़ दिया था. सो अच्छा चलो 11th से देख लो. 11th 12th 13th 14th का देखो. A B D C. ठीक है. देखो क्या आ रहा है. 11th का A, 12th गलत हो गया. B D C, 13th 14th सही है, 12th गलत हो गया. और 10th का ये C बता रहा है. देखो 11th से देखो A C D C इस द राइट आंसर. A C D C. लेकिन तुमने क्या लगाया 11th से? A B D C.
जबकि है ACDC, ठीक है। तो ये C होगा। नोमैडिक मैन स्टार्टेड सेटलिंग इन नियोलिथिक, ठीक है, तो ये हटा दो, सही आंसर होगा सेटलमेंट। नोमैडिक मैन सेटलमेंट स्टार्टेड इन नियोलिथिक। एंड 10th का आई थिंक C बता रहा है, दैट इज़ क्लियरिंग जंगल्स। व्हाट वाज द अर्लीस्ट मेटल टूल यूज्ड फॉर, दैट इज़ क्लियरिंग जंगल्स। 10th का C है ना, 10th का C है, हाँ ठीक है। चलो बहुत चेक कर लिया, चलो भागो आप। सेकंड चैप्टर अगले में देखते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन। ऑल राइट, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट हड़प्पन कल्चर, ठीक है। एंड इसका टाइम स्पैन देख लो पहले। ये जैसे मैंने बताया चालकोलिथिक 3000 से 500 तक गया था, ठीक है। तो इसके साथ कोइंसाइड करेगा हड़प्पन, दैट इज़ नॉट एंटायरली बट टू एन एक्सटेंट, दैट इज़ 2600 से लेके 1900 BC तक तुम्हारा ये हड़प्पन सिविलाइजेशन बोला जाता है, ठीक है। एंड माइंड यू दिस इज़ कॉल्ड एज ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, ठीक है। तो अब आगे देखो, द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन इन साउथ एशिया, ठीक है। यहाँ पे द इम्पॉर्टेंट वर्ड इज़ अर्बन एंड साउथ एशिया, एंड दे वर कंटेम्प्रेरीज ऑफ Mesopotamia and Egypt. So of the three aforementioned civilization, the Harappan civilization occupied the most area. इनके पास सबसे ज़्यादा एरिया था, 8 लाख स्क्वायर kilometers. Earlier historians had called this civilization the Indus Valley civilization, but since then major settlements have been excavated in the Ghaggar-Hakra belt that is spread far beyond the Indus region. So यहाँ से ये पता चलता है कि Ghaggar-Hakra belt that goes beyond the Indus region. Harappa is the first archaeological site to be discovered, therefore gives its name to the entire civilization. It forms a part of the proto-history of India, यानी जो बीच में आती है, prehistory, proto-history, then history. तो it belongs to the Bronze Age. While it is classified as a civilization that is older than Chalcolithic civilization, in many ways it is far more developed than settlements in the Chalcolithic. ये बात तो पक्की है कि it is far more developed, but it cannot be exactly said that it is older than Chalcolithic or it is newer than Chalcolithic, because some parts coincided with some Chalcolithic culture coincided with the Harappan culture. Some Chalcolithic were pre-Harappan sites and some existed even after the Harappan culture. So ये क्रोनोलॉजी छोड़ दो, ठीक है। बाकी बस ये याद रखो कि Chalcolithic से ज़्यादा डेवलप्ड थे ये लोग। अब जैसे 3200 से 2600 BC तक अर्ली है, और 2600 से 1900 तक तुम्हारा मैच्योर हड़प्पन है, और 1900 से 1300 तुम्हारा लेट हड़प्पन है। फिर से बता देना, 3200 से 2600, 2600 से 1900, 1900 से 1300. A general time range is specified. Now, there exists an undeniable cultural continuity among all the phases of Harappan civilization, yet they differ slightly from each other. Early Harappan phase, known as the regionalization era, was the formative or proto-urban phase of the Harappan civilization. It is related to the Hakra phase of settlements, and the settlements in this period are marked by the fortification, a fairly high level of expertise in specialized crafts such as the stoneworking, bead making, and metal crafting, the use of wheeled transport, and the existence of trade networks. Most raw materials except jade, which has not been found in early Harappan settlements, are similar to the ones used in mature Harappan phase. However, it did not have large cities that defined the mature Harappan phase. तो फ़र्क क्या हो गया कि इसमें फोर्टिफिकेशन ज़्यादा था। कहाँ गया? रीजनलाइजेशन एरा को अर्ली हड़प्पन फेज़ कहते हैं, या यूँ कह लो कि हाकरा फेज़ ऑफ सेटलमेंट कहते हैं, जिसमें कि settlements in this period were marked by their fortification and high level of expertise in specialized crafts. ठीक है, फिर से बता दे रहे हैं, 3 फेज में मैंने बताया था, 3200 से 2600, 2600 से 1900, 1900 से 1300, एंड देन फिर मैंने बताया कि जो सबसे पहले आया था दैट इज़ लेट द अर्ली हड़प्पन या प्री हड़प्पन फेज़ कह सकते हो। यहाँ पे फोर्टिफिकेशन था, और क्या था? फोर्टिफिकेशन कह सकते हैं, रीजनलाइजेशन एरा था, fortification era था या regionalization era था. Hakra phase of settlements, and the settlements in this period are marked by their fortification and a fairly high level of expertise in the crafts, specialized crafts work such as stoneworking, bead making, etc. Most raw materials except jade, which has not been found in early Harappan settlements, are similar to the ones used in the mature Harappan. तो यहाँ पे एक exception याद रखो, jade, mark that with a different color because जो तुम्हारा अर्ली हड़प्पन था या प्री हड़प्पन था, वहाँ पे जेड नहीं मिला था, ठीक है, रॉ मटेरियल के रूप में जेड अभी तक नहीं मिला था, वो मैच्योर हड़प्पन में जाके मिला था, ठीक है। हाउएवर डिड नॉट हैव द लार्ज सिटीज़ दैट डिफाइंड द मैच्योर हड़प्पन फेज,
लार्ज सिटीज़ का फीचर यहाँ नहीं था, वो मैच्योर हड़प्पन फेज़ में देखने को मिला था. नीदर डिड इट हैव सच expertise in crafts specialization. The Hakra phase of settlements and the settlements in this period are marked by their fortification as well as a fairly high level of expertise in their specialized crafts such as stoneworking, bead making. ठीक है. But the early phase या pre-Harappan phase जो हम कह रहे हैं, it did not have large cities that defined the mature Harappan phase, which was subsequent. The mature Harappan phase did not have large cities that defined the mature Harappan phase. Neither did it have as much expertise in craft specialization. Neither did it have as much expertise in the craft specialization. हाँ, तो क्राफ्ट तो और इम्प्रूव हुआ होगा ना मैच्योर हड़प्पन में जाते जाते. ठीक है. सम ऑफ द अर्ली हड़प्पन आर्कियोलॉजिकल साइट्स आर पादरी इन गुजरात, कालीबंगन इन राजस्थान, धोलावीरा इन कच्छ, हड़प्पा इन वेस्ट पंजाब, बालाकोट, आमरी, भिराना इन हरियाणा, कोट डीजी इन गुमला. सो अब ये सब छोड़ो, अर्ली वो वर्गीकरण छोड़ लो, या ऐसे कर लो कि अर्ली हड़प्पन में कोट डीजी को याद रख लो और कुछ फेमस हैं जैसे धोलावीरा, हड़प्पा, कोटडीजी, आमरी कोटडीजी दोनों याद रख लो, और गुमला. ठीक है, ये सब अर्ली वाले हैं. देन द मैच्योर हड़प्पन फेज़ और द इंटीग्रेशन एरा इसको बोलते हैं. उसको तो रीजनलाइजेशन एरा बोलते थे. मैच्योर हड़प्पन को इंटीग्रेशन एरा was the urban phase of the Harappan civilization, which shows characteristics of a full-fledged civilization. It is pertinent to note that the unqualified term Harappan culture or Harappan civilization primarily refers to the mature urban phase. It is equally important to understand the fact that the used term Harappan culture or Harappan civilization for all the excavated sites does not mean that all other sites are identical to Harappa. ठीक है, वो mature को ही denote कर रहा है. Whenever we say Harappan civilization, we are actually by and large referring to the mature phase of Harappan civilization, which is this, which had the full characteristics of a full-fledged civilization. It only pertains to the fact that other sites have the same basic set of Harappan material traits, such as the typical red and black pottery. रेड एंड ब्लैक पॉटरी कह लो या ब्लैक एंड रेड पॉटरी कह लो. ठीक है, क्योंकि इससे पहले वाला जो समय था वहाँ पे मैट इम्प्रेस्ड वेयर, ब्लैक बर्निश्ड वेयर वाली पॉटरी थी एंड ग्रे वेयर था. फिर चालकोलिथिक में तुम्हारा पेंटेड ग्रे वेयर गया, और अब हड़प्पन में रेड ब्लैक वेयर आ गया, रेड एंड ब्लैक पॉटरी. ठीक है. ब्रिक्स के साइज स्टैंडर्ड्स थे 1:4, 1:2:4. रेड एंड ब्लैक पॉटरी, टेराकोटा फिगरेंस, ये सब कुछ कॉमन ट्रेट्स थे. The last phase of Harappan civilization, that is to say late Harappan, which was called as localization era. So पहले वाला था regionalization era, जो कि हाकरा phase of settlements, फिर integration era, और अब last वाला localization era. It was the post-urban phase defined by a decline in the cities. ठीक है. This is the final period in the Harappan civilization and refers to the fragmentation of the culture of the integration era. The late Harappan phase comprises 5 geographical zones. अब ये जानने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. Late Harappan settlements were small compared to mature Harappan. अब फिर से small sizes हो गए. The transition from mature phase does not show any sudden discontinuity as such, but there is a gradual change in seals, pottery, confined writing, in the frequency of cubical weights and so on. The late Harappan settlements were also more in number. But they were smaller and more rural, though marked by a diverse agricultural base. ये खासा डिफरेंस देखने को मिला. तुम्हारा देखो, सबसे पहले था तुम्हारा रीजनलाइजेशन एरा. ठीक है, जिसको हम हाकरा फेज ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं, जिसमें फोर्टिफिकेशन ज़्यादा था, मार्क्ड बाय क्राफ्ट लाइक स्टोन एंड बीड मेकिंग. ठीक है. उसके बाद तुम्हारा आया था इंटीग्रेशन एरा, जो मैच्योर हड़प्पन वाला था. वहाँ पे फुल फ्लेजेड सिविलाइजेशन के चिन्ह मिले. हालांकि स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक्स और वो सब तो बाकी जगहों में भी था, बट सबसे ज़्यादा अगर डिनोट करना हो तो मैच्योर हड़प्पन फेज़ को ही करते हैं, टू रेफ़र टू द एंटायर सिविलाइजेशन ऑफ हड़प्पन. एंड देन वी लास्ट में तुम्हारा लोकलाइजेशन एरा आया, और इसमें रूरल वापस से होने लगे और शहरों के साइजेस, सिटीज़ के साइजेस कम हो गए, छोटे शहर हो गए और रूरल हो गया. इसका मतलब एग्रीकल्चर एक बार फिर से ऊपर आ गया. ठीक है. देन late Harappan settlements were small, like I said. The transition from mature phase does not show any sudden discontinuity as such, but there is a gradual change in seals, pottery, confined writing, frequency of cubical weights, and so on. ठीक है. The late Harappan settlements were also more in number, but they were smaller and more rural, though marked by diverse agricultural base. ठीक है. Then we have general features of mature Harappan phase की बात करें. Mature यानी कि जो बीच वाला है, सबसे important. Archaeological evidence reveals a great deal about the Harappan civilization, which is marked by the cultural homogeneity
as well as diversity. There is still no totally accepted theory on the origin of Harappan culture, but generally it is believed to have either emerged from pre-Harappan indigenous village culture, which may be more reasonable view, or as argued by diffusionist theorists, owes its origin to the Mesopotamian civilization. तो जो डिफ्यूजनिस्ट थियोरिस्ट्स थे वो कहते थे कि ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का ही ऑफशूट इंडिया की तरफ आ गया है, लेकिन कुछ लोग कहते थे कि ये इंडिजिनस इंडियन विलेज कल्चर का ही एक कल्माइनेशन हुआ था. Anyways, the area occupied by the Harappan civilization was triangular in shape and was largest among the three ancient urban civilization. जो मेसोपोटामियन, इजिप्ट और हरप्पन था, एरिया वाइज सबसे ज़्यादा था और ट्रायंगुलर शेप था. द अदर टू बीइंग इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया, जो कि आज के समय इराक में है. इट रफली कवर्स मॉडर्न डे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात एंड पाकिस्तान. अब इसके एक्सट्रीमिटीज़ देख लो. मांडा इन जम्मू, आलमगीरपुर ईस्ट में, तो नॉर्थ में हो गया मांडा, ईस्ट में हो गया आलमगीरपुर जो कि यूपी में है, और सुक्ता जिंडोर ये बलूचिस्तान में पड़ता है, दैट इज़ द वेस्टर्न एक्सट्रीमिटी. एंड सदर्न फ्लैंक इज़ डिनोटेड बाय मालवान, दैट इज़ इन साउथ गुजरात. ये नहीं पता था मुझे, मालवान. ठीक है, तो मालवान इज़ द सदर्न फ्लैंक. टाउन प्लानिंग की बात करो, सो हरप्पन सिविलाइजेशन इज़ नोन फॉर इट्स अर्बन आउटलुक and sophisticated sense of civic planning and organization. In most cases, the Harappan city was divided into two parts: citadel, जो कि raised part था, और फिर एक lower part था. The part occupied smaller area. हम citadel की अगर बताएं, वो smaller area में था and was frequently situated to the west of the city. Smaller and west. Rulers of the city lived here. It also contained public buildings, granaries, and important workshops. Lower part की, हाँ, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ग्रैनरीज नहीं थी, केवल रूलर्स रहते थे, ये बात नहीं है. यहाँ पे ग्रैनरीज और कुछ अदर इंपॉर्टेंट वर्कशॉप्स भी थी, और वेस्ट साइड पे था. जबकि लोअर पार्ट की बात करें तो कॉमन सिटीजनरी लिव्ड इन द लोअर पार्ट ऑन देयर प्रोफेशनल लाइव्स इन दिस पार्ट ऑफ द सिटी, carried on their professional lives in this part of the city. Now, city planning roughly followed a grid pattern, and streets ran from north, south, and cut at right angles. Distinguishing aspects of urban town planning are as follows. Standard size of the bricks 1:2:4 in length, breadth, height. या यूँ कह लो कि 1:4. हाँ, एक्चुअली ये उल्टा लिखा है. थिकनेस इज़ द हाइट. तो ये जो 1:2:4 है, इसमें 4 denotes the length, 2 denotes the breadth, and 1 denotes the height across all Harappan structures. Equally striking was the uniformity in the average size of bricks. अब इसमें भी याद करने, इतना याद मत करो, बस इतना याद रख लो कि uniformity of the bricks in the average size of the bricks, बस इतना काफ़ी है. They had an excellent drainage system. Drains were made of mortar, lime, and gypsum and covered with large brick slabs for easy cleaning. Houses were often two or more stories, though varied in size, quite monotonous. No window faced the streets, and the houses had tiled bathrooms. Tiled bathrooms थे, and no window faced the streets. Some houses had their own wells. ठीक है. सोसाइटी की बात करो तो ये अर्बन सोसाइटी थी, comprising mostly of the middle class, and the houses exhibited suggest at least 3 distinct social groups ruled: rich merchants and poor laborers who lived in the lower part of the city. तो 3 वर्ग थे सोसाइटी के. हालांकि ओवरऑल अर्बन सोसाइटी थी, comprising by and large the middle classes. Rulers थे, rich merchants थे and poor laborers थे. However, there is no clear idea among historians about the nature of inheritance in Harappan society. Other characteristic features of the Harappan society were they were great experts in the use of potter's wheel, but were poor in artistic works of stone. तो ये भी अच्छा सवाल बन सकता है. तो हरप्पन की अगर बात करें, they were great at potter's wheel, लेकिन स्टोन या स्कल्पटिंग, क्वारिंग वगैरह में उसमें उतना आर्टिस्टिक वर्क्स ऑफ स्टोन में उतना अच्छा नहीं थे. हाँ, लेकिन पॉटरीज में काफ़ी आगे थे. हरप्पा की बात करें, primarily red black pottery, redware pottery painted with black designs. Red पहले आ रहा है, that means पहले red बनाया, उसके ऊपर black paintings कर दी, तो that is red black pottery. ये हरप्पा में थी. ठीक है. Was popular. Some of these pots were used for storing grain, some water, while some perforated pots were probably used for brewing fermented alcoholic beverages. Then a lot of terracotta has been found at many sites, including figurines of animals such as bulls, buffaloes, dogs, monkeys. इनके terracotta figurines मिले हैं, including dogs and monkeys. Can you believe it? Terracotta bangles have also been found. It is important to note that more female figurines have been uncovered in comparison to male figurines. इस पे भी सवाल बन सकता है. अच्छा MCQ बनाना हो UPSC में तो more female figurines have been found compared to the male figurines. Dogs and monkeys के भी मिले हैं. Perforated pots मिले हैं. They were
better in potteries compared to stone sculpting. The Harappans refined the art of bead making. Bead making में भी काफ़ी आगे थे. Jewelry excavated includes gold and silver jewelry भी मिल गई थी इस वक्त. At Alha-Dino near Karachi, a lot of necklaces made of gold, silver and carnelian. Gold, silver, carnelian के कई necklaces कहाँ मिले थे? Alha-Dino, which is near in Karachi. Now ये सारे gold, silver मैंने बताया. Copper और bronze भी they were known to the people of Harappa. However, iron was not known. They were also good at metallurgy and producing alloys. The craftsmen used to both make artifacts out of pure copper as well as bronze, such as spears, knives, short swords, mirrors, axes. The number of pure copper artifacts was far greater than alloyed bronze ones. इस पे भी सवाल बन सकता है. तो metallurgy के concepts, they were very well versed with that alloy making process. लेकिन alloy making आता था तो क्या इसका मतलब कि bronze ज़्यादा दिखे? नहीं. ज़्यादा क्या दिखे? Copper artifacts ज़्यादा देखने को मिले. However, the entire Harappan culture is also called as Bronze Age. We have bronze culture. Still, जितना भी metallurgical craftsmanship किया गया था वो उसमें artifacts की नज़र से देखा जाए तो there were more number of copper artifacts compared to bronze ones. But it does not mean technological backwardness, rather points towards cultural preference in all likelihood. Harappan people generally wore garments of cotton. Cotton भी पता था, wool भी पता था. The Harappans relished non-vegetarian food. ये लोग non-vegetarian थे. Fish eating was common. Milk and curd was also consumed along with fish. And the Harappan societies of Sindh and Punjab largely consumed wheat and barley. तो वही चीज़ है जो जितना वेस्ट में पढ़ोगे उतना wheat and barley मिलेगा. ईस्टर्न साइड पे fish and rice. I don't think rice. wheat and barley था, rice नहीं था. और राइस किधर था? रंगपुर एंड सरकाडोटा. रंगपुर एंड सरकाडोटा में. सो रंगपुर एंड सरकाडोटा में राइस एंड मिलेट्स खाते थे, जबकि रंगपुर एंड सरकाडोटा में राइस खाते थे, जबकि सिंध एंड पंजाब में वीट एंड बार्ली खाते थे. ठीक है. नाउ द हरपन स्क्रिप्ट वाज पिक्टोग्राफिक एंड लोगोसाइलेबिक. ईच सिंबल स्टूड फॉर अ वर्ड. हरपन राइटिंग वाज बोस्ट्रोफिडॉन. ये अच्छा पॉइंट है. पिक्टोग्राफिक, लोगोसाइलेबिक, ईच सिंबल स्टूड फॉर अ वर्ड. तो लोगोसाइलेबिक बोल लो या पिक्टोग्राफिक बोल लो, एक ही मतलब है. लोगोसाइलेबिक where each symbol represented a word, and bostrofidon, ये right से left and then left to right and then right to left alternately. Then the Harappan script has not been deciphered so far. The evidence of a common script, however, points to great cultural integration, and its virtual disappearance by 1700 BCE hints at the lack of sufficient downward percolation and of writing. Economy की बात करें. So the inferences about Harappan economy have been derived from flourishing trade relations with its contemporary Mesopotamian and Persian civilizations. The Mesopotamians call the Indus region as Meluha. इस पे सवाल बन सकता है. And the Mesopotamians text speak of 3 intermediate trading stations at Dilmun. ये probably Persian Gulf को कह रहा है. Dilmun, फिर मकान, probably the Makran coast या ओमान. ठीक है. And Meluha. मेल्यूहा तुम्हारा इंडस वैली हो गया, इंडस वैली रीजन. तो मेसोपोटामियंस के जो जितने भी लिटरेरी वो मिले हैं उसमें हालांकि ट्रेड तो चल रहा था इजिप्ट और मेसोपोटामिया उस समय की कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस के साथ. और वहाँ के ग्रंथों में कुछ ये मिला है कि 3 जगहों के नाम एक ट्रेडिंग स्टेशंस के रूप में. 3 जगहों के नाम, एक था दिलमन, दैट इज़ दिलमन का क्या है? प्रॉबेबली द बहराइन ऑन द पर्शियन गल्फ. दिलमन इज़ पर्शियन गल्फ. मैक्रन, और फिर तो दिलमन हो गया पर्शियन गल्फ, और फिर मकान हो गया तुम्हारा मैक्रन कोस्ट. ठीक है. दिलमन हो गया पर्शियन गल्फ, मकान हो गया मैक्रन कोस्ट ओमान के पास, और फिर मेल्यूहा तो यही था, इंडस वैली. ठीक है. Seals had special significance in the Harappan context. Every merchant probably had a seal bearing an emblem, often of a religious character and a name. Brief description on one side. The standard Harappa seal was a square and oblong plaque made of steatite stone. इस पे भी सवाल बन सकता है. तो एक तो स्क्वायर शेप था, स्क्वायर ओब्लॉन्ग प्लाक. ठीक है. स्क्वायर ओब्लॉन्ग प्लाक with made of steatite stone, though its primary purpose is inferred to mark the ownership of property. They may also have served as amulets. The key aspects of Harappan trade networks and economy are as follows. They carried out internal and external trade. There was no metallic money in circulation. ये बहुत अच्छा point है. No metallic money was in circulation and trade was conducted by means of barter. Inland transport primarily employed bullock carts.
Harappan seals have been found in Mesopotamian cities like Susa and Ur. Susa and Ur, दो नाम याद रखो. These are Mesopotamian cities. In Nippur, a seal has been found bearing Harappan script and a unicorn. Recently, some ancient sites in Persian Gulf have also yielded Harappan seals. In Mohenjo-daro, 3-cylinder seals of the Mesopotamian type have been found, which underlines their trading relations. तो Susa और Ur, which are Mesopotamian cities, वहाँ पे हमारे यहाँ के हरप्पन सील्स मिले हैं. एंड मोहनजोदारो में मेसोपोटामिया के सील्स मिले हैं. Now, in Lothal, a button seal was found. Then there were bead making factories at Chanodaro and Lothal. दोनों जगहों पे चानोदारो एंड लोथल में था ये. ठीक है. The products of these factories were items of export. A dockyard has been excavated in Lothal and seaports have been found in Rangpur, Somnath and Balakot. तो रंगपुर, सोमनाथ, रंगपुर एंड बालाकोट, यहाँ पे पोर्ट्स मिले हैं. ठीक है. A remarkable aspect of Harappan culture was its standardization and accuracy in context of weights and measures. तो weights followed binary system in the lower denominations 1, 2, 8, 16, 32, 64 and decimal for the higher weights. ठीक है. decimal for the higher weights, but फिर भी उसमें 16 के मल्टीपल्स थे या 160 के मल्टीपल्स थे. तो देखो ये क्लियर हो गया. ये भी एक अच्छा पॉइंट लिखने के लिए है. weights and measures भी स्टैंडर्डाइज थे. binary for the lower denomination of weights and higher denominations in multiples of 160 for the higher weights. weights were made of shirt. ये सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला शर्ट था मटेरियल, जैसे कि प्लाक, ओब्लॉन्ग, स्क्वायर, मेड ऑफ स्टेटाइट, दैट वाज व्हाट सील. ठीक है. उसी तरह से वेट्स की बात करें सो ये शर्ट के बने हुए थे. ठीक है. जनरली क्यूबिकल इन शेप. देन मेजर्स ऑफ लेंथ वर बेस्ड ऑन द फुट, द क्यूबिट. A shell scale has been found at Mohenjo-daro. A shell object probably used to measure angles has been found at Saurashtra and an ivory scale has been discovered in Lothal. तो मेजरमेंट टूल्स के बात करें तो आइवरी स्केल लोथल में मिला है और शेल स्केल हैज़ बीन फाउंड इन मोहनजोदारो. शेल स्केल मिला है मोहनजोदारो में और शेल ऑब्जेक्ट मिला है सौराष्ट्र में. ठीक है. तो ये हो गया. अब इस पे भी सवाल बनते हैं. देखो इसमें जो सबसे लेसर नोन या यूनिक हैं जैसे बिटमैन है, तो ये आता था बलूचिस्तान से और टर्कोइस आता था खोरासन से. ठीक है. और जेड आता था पामीर से. लपीस लाजूली अफ़गानिस्तान. एक्चुअली टिन एज वेल एज लपीस लाजूली ये दोनों अफ़गानिस्तान से आता था. तो टिन का ईरान से भी चला जाएगा. कॉपर खेतरी तो सही है. गोल्ड ईरान, कोलार एंड अफ़गानिस्तान. ठीक है. तो कोलार जो कि साउथ इंडिया में है, अफ़गानिस्तान वहाँ से भी गोल्ड आता था और ईरान वहाँ से भी गोल्ड. कॉपर राजस्थान, खेतरी, टिन तुम्हारा ईरान, अफ़गानिस्तान. लपीस लाजूली ये अफ़गानिस्तान से आता था. टिन भी अफ़गानिस्तान से आता था. टर्कोइस खोरासन. बिटमैन बलूचिस्तान. लेड साउथ इंडिया. एंड स्टेटाइट याद रख लो अलग कलर से. अ प्लेस कॉल्ड टापी छाया या छाया इन ईरान. ठीक है. तो ये क्लियर हो गया. टापी छाया से तुम्हारा क्या आता था? स्टेटाइट. ठीक है. अब अगर इधर देखो रिलीजन की बात करो तो मोस्टली सेक्युलर थी. नॉट अ सिंगल स्ट्रक्चर क्वालिफाइंग एज टेम्पल हैज़ बीन फाउंड एंड सम सॉर्ट ऑफ सेक्रेड रिचुअल स्पॉट्स इंक्लूड द ग्रेट बाथ एट मोहनजोदारो. ठीक है. ग्रेट बाथ वो उसको कुछ रिलीजियस या रिचुअलिस्टिक सिग्निफिकेंस दे सकते हैं. वेयर द एलीट इन ऑल लाइकलीहुड अंडरटुक रिचुअल एक्टिविटी दैट इंक्लूडेड सेरेमोनियल बाथिंग. आइडोलेट्री वॉज प्रैक्टिस्ड. ठीक है. where the elite in all likelihood undertook ritual activity that included ceremonial bathing, where idolatry was practiced. The Harappan people generally worshipped Mother Goddess Pashupati Mahadev, and idolatry was practiced. फिर ये आई थिंक मदर गॉडेस नहीं, ये पशुपति शिवा है. ठीक है. एंड लिंगम फैलस एंड यूनिवर्स ये भी किया जाता था. कल्ट फॉर फर्टिलिटी गॉडेस. देन पीपल ट्री का भी रिलीजियस सिग्निफिकेंस था. हार्म्ड बुल का भी था. एंड बर्ड्स एंड वन हॉर्न राइनो, सॉरी नॉट राइनो बट वन हॉर्न यूनिकॉर्न. तो मैं कुछ फिर से बता दे रहा हूँ. देखो रिलीजियस वाले वन हार्म्ड बुल था और वन हॉर्न यूनिकॉर्न था. वन हॉर्न यूनिकॉर्न एंड हार्म्ड बुल. ठीक है. तो वन हॉर्न यूनिकॉर्न था, हार्म्ड बुल था और ये पीपल. ठीक है. तो ये पीपल ट्री था. तो ये हो गया पीपल ट्री था. इसको भी वर्शिप वगैरह किया जाता था पीपल ट्री. ठीक है. और ये तो लिंगम योनि पता ही है. तो ये कुछ रिलीजियस सिग्निफिकेंस होल्ड करने वाले सिम्बल्स थे. अदर की इन्फ्लुएंसेस अबाउट हरप्पन रिलीजियस प्रैक्टिसेस आर एज फॉलोज. फायर अल्टर्स हैव बीन फाउंड इन कालीबंगन एंड लोथल. इसमें कालीबंगन ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लोथल भले भूल जाओ बिकॉज इट हैज़ अ सेपरेट डॉकयार्ड टॉपिक.
तो कालीबंगन में फायर ऑल्टर्स मिले थे, और आई थिंक आइवरी स्केल लोथल के साथ और कहाँ मिला था, छोड़ो अभी बाद में देख लेंगे। तो ये हो गया। अब ये देखो, द सील ऑफ पशुपति महादेवा इज सराउंडेड बाय एन एलिफेंट एंड टाइगर और राइनो एंड बफलो एंड अ डियर नियर द फीट। इट इज़ लाइकली दैट दीज एनिमल्स वर ऑल्सो वर्शिप्ड। तो अभी मैंने हमड बुल बताया, वन हॉर्न यूनिकॉर्न बताया, पीपल ट्री बताया, ठीक है। बर्ड्स, डोव एंड पीजन, इनको भी रिलीजियस सैंक्टिटी अलॉटेड थी। उसके अलावा ये जो पर्टिकुलर सील मिला है यहाँ पे, एलिफेंट, टाइगर, राइनो एंड बफलो एंड अ डियर, ये 5 एनिमल सराउंड किए हुए थे ना। अगर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में बॉडीज़ को दफनाया जाता था, ठीक है। वैसे देखा जाए तो आई थिंक चैलकोलिथिक में भी साउदर्न इंडिया में, महाराष्ट्र में नॉर्थ साउथ में, और ईस्टर्न में, सॉरी साउथ इंडिया में ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, एंड ईस्ट इंडिया में फ्रैक्शनल बरियल वगैरह किया जाता। लेकिन यहाँ पे हड़प्पा में ओवरऑल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही बरियल्स किए जाते थे। दीज इंक्लूडिंग फूड, पॉटरी एंड ऑर्नामेंट्स भी साथ में दफना दिया जाता। दीज आइटम्स वर नॉट एज एक्सपेंसिव इन कंपैरिजन टू दोज इन कंटेम्प्रेरी मेसोपोटामियन और इजिप्शियन कल्चर्स। तो 3 मेथड्स थे मुख्यतः बरियल्स के। कंप्लीट बरियल था, फ्रैक्शनल बरियल था, where the bones were gathered and buried after exposure of the body to birds and beasts, and cremation followed by burial of the ashes। ठीक है, तो 3 प्रकार का था। फ्रैक्शनल बरियल था, कंप्लीट बरियल था, और क्रीमेशन के बाद बरियल था। फिर इन हरप्पा coffins contain bodies have been found. कालीबंगन small circular pits containing large urns of pottery have been found। कालीबंगन में ये भी मिला है। देखो, अभी मैंने ऑल्टर्स, फायर ऑल्टर्स बताए, गड्ढा खोद के उसमें पॉटरीज को दफनाया गया था। स्मॉल सर्कुलर पिट्स, सर्कुलर गड्ढे, और उसमें लार्ज अर्न्स बेसिकली आर कंटेनर्स, एंड पॉटरीज हैव बीन फाउंड। सर्कुलर पिट्स में दफनाया गया है कालीबंगन में। फर्दरमोर, ट्रायंगुलर terracotta cake has been discovered which has a horned deity on one side and an animal being dragged by a human on the end of a rope on the other, pointing towards animal sacrifice in all likelihood। एनिमल सेक्रीफाइस के भी यहाँ पे प्रमाण मिल गए हैं। एट लोथल, अ पेयर ऑफ मेल एंड फीमेल स्केलेटन्स हैव बीन डिस्कवर्ड टुगेदर। ठीक है, बरियल्स में, लोथल में ये है, और एनिमल सेक्रीफाइस का भी मिल गया है। तो अब एग्रीकल्चर का पॉइंट देखो। द हरप्पन सिविलाइजेशन was the earliest known civilization to produce cotton, known as Sindon by the Greeks. As from Sindh in the Indus plain, people sowed seeds in the floodplains in November when the flood water receded and reaped their harvests of wheat and barley in April। ठीक है, तो हार्वेस्ट कब करते थे व्हीट और बार्ली को? अप्रैल में। और नवंबर में वो क्या करते थे? सीड्स को बोते थे। नवंबर व्हेन द फ्लड वाटर, देखो, पीपल सोड सीड्स इन फ्लड प्लेन्स इन नवंबर, ठीक है, और हार्वेस्ट करते थे अप्रैल में। ठीक, दे प्रोड्यूस सफिशिएंट फूड ग्रेन्स टू फीड देमसेल्व्स एंड द सरप्लस फूड ग्रेन्स वाज स्टोर्ड इन ग्रैनरीज। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पर्टेनिंग टू द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ द हरप्पन्स आर मेंशन बिलो। अब वीट की बात करो तो ये मेहरगढ़ में जाएगा, स्पेशली इन मेहरगढ़ वीट जाएगा। बार्ले, हॉर्स ग्राम, पीस, मेलन, वाटरमेलन। देखो, मेलन एंड वाटरमेलन भी ये लोग जानते थे, और मेहदी भी जानते थे। ठीक है, केवल यूनिक वाले उठाओ बिकॉज इन्हीं पे सवाल बनेगा। मेलन्स जानते थे, और वीट तो मेहरगढ़ में था, और मेहदी भी जानते थे। दे ऑल्सो एक्सप्लॉयटेड रिवराइन एंड मैरीन रिसोर्सेज wherever possible. For example, mollusks were an important protein rich food element in the coastal cities of Gujarat people। ठीक है, mollusks भी जानते थे, just like mustard, garlic, melons। So melons and mollusk, ये दोनों जानते थे। Domesticated animals on a large scale besides cattle, cats and dogs were also, बिल्ली और कुत्ते भी पाले गए थे। Horse wasn't a regular used in Harappans but were well acquainted with elephant and the rhinoceros। It is pertinent to note that Harappan culture was not horse centered। Tigers were often represented in figures but leopards were rare। Leopards rare थे। On different pottery paintings one can easily find rabbits, peacocks, ducks, pigeons, wild fowls and monkeys। Plowed fields, possibly with the help of wooden plows, have been discovered in कालीबंगन। प्लॉट फील्ड्स कालीबंगन में वुडन प्लो भी मिला है। लोथल में अभी मैंने बताया। कालीबंगन में फायर ऑल्टर मिला है ना? नहीं, लोथल में मिला है। टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लो हैव बीन फाउंड इन बनावली एंड भावलपुर। भावलपुर में भी ये मिला है बनावली के साथ। एंड रिमेन्स ऑफ हॉर्सेज एट सुरकाट्योटा एंड डॉग्स विद मैन इन ग्रेव्स एट रोपर। कुत्ते के साथ आदमी का दफनाया साथ में रोपर में मिला है। ठीक है, ध्यान रखना, डायरेक्ट सवाल बनेगा। अब डिक्लाइन पे आते हैं। ठीक है, तो देखो, ये
Decline is roughly dated around 1900 BC, but no archaeological evidence accurately provides an explanation for the de-urbanization. अब ये कह सकते हैं कि मैच्योर फेज was followed by the late Harappan phase. Possible theories of decline of the Harappan civilization are as follows. आर्यन इन्वेजन ये हुआ था, ये इन्होंने व्हीलर एंड गॉर्डन ने बोला था. इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस ये फेयर चाइल्ड ने बोला था. चेंज इन द रिवर कोर्स ये एम.एस. वट्स एंड लैम्ब्रिक ने बोला था. एम.एस. वट्स एंड लैम्ब्रिक एंड डेल्स. ठीक है, तो चेंज इन द रिवर कोर्स लैम्ब्रिक एंड एम.एस. वट्स ने बोला. इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस पता नहीं, और ये गॉर्डन और व्हीलर ने आर्यन इन्वेजन बोला. इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस फेयर चाइल्ड ने बोला था. लो रेनफॉल स्टेन ने बोला था. ठीक है, देखो रिवर चेंज इन रिवर कोर्स डेल था और लो रेनफॉल स्टेन था. और फ्लड बोला था एस.आर. राव एंड मकाए ने मैके एस.आर. राव. और ड्राइंग ऑफ घग्गर एंड इंक्रीजिंग एरिडिटी ये डी.पी. अग्रवाल बोले थे. डी.पी. अग्रवाल एंड सूड ने बोला था ड्राइंग ऑफ घग्गर. अर्थक्वेक बोला था राइकेस एंड डेल्स. नेचुरल कैलेमिटीज़ कैनेडी बोले थे. ठीक है, तो ये हो गया नेचुरल कैलेमिटीज़ कैनेडी. अर्थक्वेक बोले थे राइकेस एंड डेल्स. एरिडिटी घग्गर डी.पी. अग्रवाल एंड सूड. ठीक है, तो ये है डी.पी. अग्रवाल एंड सूड ने बोला था एरिडिटी एंड ड्राइंग ऑफ घग्गर. ठीक है, लो रेनफॉल बोला था स्टेन ने. और चेंज इन रिवर कोर्स डेल एंड एम.एस. वट्स लैम्ब्रिक ने. इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस फेयर चाइल्ड आर्यन इन्वेजन व्हीलर एंड गॉर्डन. अब ये किसने क्या डिस्कवर किया. ठीक है, तो यहाँ पहले थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं. ये कट कैसे गया असेंबली. अच्छा चलो लेट्स टेक अ ब्रेक. ऑलराइट, सो वी आर बैक. इसमें है फेमस हड़प्पन साइट्स. जैसे हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान में पड़ता है और ये रावी नदी के किनारे पड़ता है. एंड इट वाज एक्सकेवेटेड बाय दयाराम साहनी इन द ईयर 1921. यहाँ पे 6 ग्रैनरीज मिली थी. 6 ग्रैनरीज की 2 रोज़ मिली थी. एविडेंस ऑफ कॉफिन बरियल्स एंड सेंटर एंड सीमेट्री एच कल्चर. 6 ग्रैनरी यहाँ मिली थी. ये रावी नदी के किनारे दयाराम साहनी 1921 पाकिस्तान. एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना ग्रैनरी वाला और सीमेट्री एच कल्चर ये यहाँ पे मिला था. एच फॉर हड़प्पा, एच फॉर एच कल्चर. बाकी अगले पे देखते हैं मोहनजोदारो. माउंट ऑफ द डेड भी बोलते हैं. ये सिंध में मिला था, जबकि वो कहाँ मिला था, वो पंजाब प्रोविंस ऑफ द पाकिस्तान में मिला था. ये सिंध प्रोविंस में मिला था मोहनजोदारो. और ये इंडस नदी पे है मोहनजोदारो, जबकि वो हड़प्पा रावी नदी पे है. एंड दिस वाज एक्सकेवेटेड बाय आर.डी. बैनर्जी इन 1922. हालांकि ही वाज नॉट द ओनली पर्सन टू एक्सकेवेट दैट. कई लोग थे, बट इनका नाम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे. तो अच्छा, यहाँ पे मोहनजोदारो में ग्रेट बात है. ठीक है, और क्या है, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल ये यहाँ पे मिला था. ठीक है, यही है ना. ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, मदर गॉडेस पशुपति, बियर्डेड मैन जो कि शॉल ओढ़े हुए है. ठीक है, एंड वुमेन टू बी सेक्रीफाइस्ड. तो ये सारी चीज़ें तुम्हें मोहनजोदारो में मिली थी. ठीक है, फिर से बता दे रहे हैं. देखो यहाँ पे ग्रेट बात है मोहनजोदारो में. ठीक है, माउंट ऑफ द डेड. यार इस पे ध्यान दो ना, क्या बोल रहे हैं. पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में हड़प्पा मिला, रवि नदी के किनारे दयाराम साहनी ने एक्सकेवेट किया. सीमेट्री एच कल्चर मिला यहाँ पे, और 2 rows of 6 ग्रैनरीज. फिर मोहनजोदारो ये आर.डी. बैनर्जी एंड ये इंडस नदी के किनारे मिला था, और ये सिंध प्रोविंस में मिला था. यहाँ पे ग्रेट बात है, मदर गॉडेस है, वुमेन टू बी सेक्रीफाइस्ड वाला है, और एक स्कल्पचर ऑफ अ मैन है वेयरिंग ए शॉल, और पशुपति है. ठीक है, इसके बाद लोथल में आ जाओ. यहाँ पे ये भोगवा एंड साबरमती रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे है. भोगवा एंड साबरमती. अच्छा, लोथल वॉज एक्सकेवेटेड या डिस्कवर्ड बाय एस.आर. राव. और ईयर देख लो 1957 है. ठीक है, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस. यहाँ पे डॉकयार्ड मिला था. सबसे इम्पोर्टेंट यही है. हालांकि यहाँ पे बीड मेकिंग फैक्ट्री भी थी लोथल में, बट और राइस हस्क के रिमेन्स हैं. एंड हाउसेस विद एंट्रेंसेस ऑन द मेन स्ट्रीट, जबकि हाउस ऑफ ऑल ऑफ द साइड्स हैड साइड एंट्रीज. तो ये भी अच्छा सवाल बन सकता है कि लोथल वॉज द ओनली प्लेस वेयर एंट्रेंस, घरों के एंट्रेंस मेन स्ट्रीट पे होते थे. ठीक है, और यहाँ पे लोथल में टाउन वाज नॉट डिवाइडेड इनटू 2 सेक्टर्स जैसा बताया था. सिटाडेल और मतलब एक अपलैंड वाला और एक लो लैंड वाला, वैसा ये वर्गीकरण यहाँ लोथल में नहीं था. राइस हस्क मिला था. डॉकयार्ड है एस.आर. राव 1957 है. भोगवा और साबरमती के कॉन्फ्लुएंस पे है. ठीक है,
एंड हाउसेस विद एंट्रेंसेस ऑन द मेन स्ट्रीट, ये लोथल का फीचर है। अच्छा, जैसे यहाँ पे मेल और फीमेल बरियल मैंने स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पे साथ में किया गया था, ठीक है। पेंटिंग ऑन जार्स रिजेंबलिंग द स्टोरी ऑफ कनिंग फॉक्स इन पंचतंत्र, तो ये एक एमसीक्यू बन सकता है। जैसे पंचतंत्र की कहानी का दृश्य कौन से इंडस वाली साइड से दिख रहा है, तो वो फॉक्स वाली कहानी, तो दैट इज़ लोथल, ठीक है। आइवरी स्केल भी मिला था यहाँ पे। एंड अब ये टेराकोटा मॉडल ऑफ शिप, तो ये भी यहीं मिली थी। एंड फायर ऑल्टर्स भी मिले थे लोथल में और कालीबंगन में मिले थे। अब कालीबंगन में देखो यहाँ भी फायर ऑल्टर्स हैं, यहाँ भी लोथल में भी हैं। अच्छा, कालीबंगन की बात करें तो वहाँ नदी का नाम पहले बताओ, दैट इज़ घग्गर, ठीक है। और ये राजस्थान में पड़ता है। और कालीबंगन वॉज डिस्कवर्ड बाय अमलानंद घोष इन 1953, ठीक है, अमलानंद घोष। और वैसे देखा जाए तो यहाँ पे बीबी लाल एंड बी के थापर, तीनों ही के नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा है। बीबी लाल, बी के थापर और अमलानंद घोष। यहाँ पे कालीबंगन में प्लोड फील्ड मिला है, फायर ऑल्टर मिला है, प्लोड फील्ड मिला है कालीबंगन में, ठीक है। और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ। और यहाँ सर्कुलर पिट्स मिले हैं जहाँ पे वो अर्न्स रखे गए थे ना, ध्यान आ रहा है, पॉटरीज को दफना के रख दिया गया था, शायद यहीं था वो, कालीबंगन में ही था शायद। फिर चानोदार पे आओ। अब यहाँ पे बीड फैक्ट्री साइट्स काफ़ी मिले हैं। और यहाँ पे दोनों ही मतलब प्री हड़प्पन एज वेल एज मैच्योर हड़प्पन के मिल गए हैं चानोदारो में, बीड मेकिंग फैक्ट्री है। अच्छा, ये भी सिंध में है और ये भी इंडस नदी के किनारे पड़ता है। तो मोहनजोदारो के किनारे भी इंडस है, चानोदारो के भी किनारे इंडस है। मोहनजोदारो भी सिंध में है, ये भी सिंध में है। बट द ओनली डिफरेंस इज मोहनजोदारो वाज डिस्कवर्ड बाय आर.डी. बनर्जी एंड चानोदारो वाज डिस्कवर्ड बाय मजूमदार, ठीक है। ईयर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। फिर अच्छा, ओनली हड़प्पन सिटी विदाउट अ सिटाडेल, तो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो चानोदारो। एंड लोथल में दो पार्ट्स नहीं थे, ये बात ध्यान रखना। रंगपुर ये लोथल के पास ही है, गुजरात में है। अब ये मादर रिवर पे है, एम.एस. वट्स ने डिस्कवर किया था। दिस इज़ ईजी टू रिमेंबर, ठीक है। पहले हम बनावली देख लेते हैं, हरियाणा। और ये रंगोई नदी या रंगोली या बनावली रंगोली नदी पे पड़ता है, ठीक है। और बनावली वॉज डिस्कवर्ड बाय आर.एस. बिष्ट, या बिष्ट भी याद रख सकते हो सिंपली, ठीक है। देखो अब कई सारे हो गए ना, रंगपुर भी महाराष्ट्र, सॉरी रंगपुर गुजरात में, और रंगपुर ये माडर रिवर पे है, एम.एस. वट्स ने डिस्कवर किया था। और ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। बनावली हरियाणा में विच वॉज डिस्कवर्ड बाय बिष्ट, रंगोली नदी के किनारे, जबकि रंगपुर माडर नदी पे है, एम.एस. वट्स ने डिस्कवर किया था। आलमगीरपुर ये मेरठ यूपी पे हिंडौन नदी के किनारे है। और अभी यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। आलमगीरपुर तो अलग से याद रखना पड़ेगा, यूपी के लिए पढ़ते हैं हम लोग। और यज्ञदत्त शर्मा, ठीक है, 1958 में किया गया था। कोट डीजी, अब ये सिंध नदी भी है, सिंध जगह भी है। और ये छोड़ दो, ये चूँकि इंडिया में नहीं है तो ये नहीं पूछते हैं, ठीक है। बट घूरे एंड फजल अहमद, ये चाहो तो याद कर सकते हो, कोट डीजी एंड आमरी, बस इनके नाम याद रख लो। एंड दैट द फैक्ट दैट दे आर इन पाकिस्तान, कोट डीजी एंड आमरी, घूरे एंड फजल अहमद। बाकी रोपर ये बताया तुम्हें, सतलज नदी के किनारे पड़ता है। और ये भी यज्ञदत्त शर्मा ने किया था, जो कि आलमगीर ने किया था, वही रोपर भी किए थे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे रोपर में एविडेंस ऑफ बरिंग डॉग बिलो ह्यूमन, डॉग रोपर में मिला था, डॉग के साथ ह्यूमन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, रोपर को रूपनगर भी कहते हैं। डॉग और ह्यूमन के साथ बरियल तो ये रोपर में मिला, यज्ञदत्त शर्मा ने किया। और सुरका डोटा ये जे.पी. जोशी ने किया था, ये गुजरात के भुज इलाके में पड़ता है। यहाँ पे बोन्स ऑफ हॉर्स मिले थे। सुक्टा जंडोर ये इम्पॉर्टेंट है, ये दश्त नदी या दशक रिवर के पास मतलब बैंक्स पे पड़ता है। और ये स्टेन नामक कोई व्यक्ति ने किया था। सुक्ता जंडोर ये भी पाकिस्तान में पड़ता है, इनफैक्ट बलूचिस्तान में। और स्टेन नामक व्यक्ति ने किया था दश्त नदी के किनारे। फिर ढोलावीरा ये भी जे.पी. जोशी ने किया था, जस्ट लाइक सुरका डोटा। तो सुरका डोटा और धोलावीरा दोनों ही के दोनों गुजरात में भी हैं और दोनों ही जे.पी. जोशी के द्वारा किया गया था। और धोलावीरा में जाइंट वाटर रिजर्वायर एंड यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम निकाला गया था। ऑल्सो धोलावीरा में इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइज्ड साइंस द हड़प्पन स्क्रिप्ट मिली थी, साइन बोर्ड मिला था, ठीक है। और लार्ज स्केल यूज़ ऑफ सैंडस्टोन अलॉन्ग विद मड ब्रिक, सैंडस्टोन का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा कहाँ किया गया, ये धोलावीरा में किया गया। फिर राखीगढ़ी हरियाणा, ये ओवर 350 हेक्टेयर सबसे बड़ा है
लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट। ठीक है, सिविलाइजेशन ये कुछ कट हो गया यार। शोज़ ऑल 3 फेजेस ऑफ हरप्पन को, वो तो ठीक है, नियर हिसार हरियाणा वो छोड़ो। और तो ये भी अब ये पढ़ने में नहीं आ रहा है। भीर रन्ना फ्रेगमेंटेड आर्टिफैक्ट ऑफ, अब ये पढ़ने में ही नहीं आ रहा है। खैर ये हम देख लेंगे। भिर रन्ना का राखी गढ़ी से क्या लेना देना, ये गूगल कर लेना। बाकी अब ये डिफरेंस बिटवीन हरप्पन एंड इजिप्शियन मेसोपोटामियन देखो। हरप्पन में प्लान टाउन्स विद चेस बोर्ड सिस्टम, एक्सेलेंट ड्रेनेज सिस्टम, जबकि इजिप्शियन में टाउन्स शो अ हैप्पैजार्ड ग्रोथ। तो हरप्पन वॉज मोर ऑर्गेनाइज्ड कंपेयर टू इजिप्शियन एंड मेसोपोटामियन। यहाँ पे रेक्टेंगुलर हाउसेस विद ब्रिक लिंड बाथरूम्स, वेल्स together with their stairways are found in the all urban cities, such town planning absent in Mesopotamia. यहाँ पे पॉटरी और सील्स खुद का प्रोडक्शन करते थे, ऐसा भी नहीं है मेसोपोटामिया। हरप्पा में इन्वेंटेड देयर ओन टिपिकल स्क्रिप्ट विच बेयर्स नो रिजेम्बलेंस टू द इजिप्शियन, जबकि मेसोपोटामिया हैज़ क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। तो क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट जाएगी इसके साथ, ठीक है, मेसोपोटामिया के साथ। एंड द इजिप्शियन स्क्रिप्ट इज़ नोन एज हायरोग्लाइफिक्स। बोथ स्क्रिप्ट्स हैव बीन डिसाइफर्ड विच टेल अस अ लॉट अबाउट दीज सिविलाइजेशंस। लेकिन क्यूनिफॉर्म और ये क्या नाम है, हीरोग्लाइफिक्स, क्यूनिफॉर्म और हीरोग्लाइफिक्स। ये हीरोग्लाइफिक्स कहाँ की है, इजिप्शियन की है, और क्यूनिफॉर्म मेसोपोटामियन की है। दीज आर डिसाइफरेबल, लेकिन यहाँ का नहीं है, हरप्पा का डिसाइफर किया ही नहीं जा पा रहा है। बाकी यहाँ पे सील्स में ही लिखे हुए मिले हैं, जबकि यहाँ पे प्रेस्ड लेटर्स ऑन टू मॉइस्ट क्ले टैबलेट्स वगैरह पे मिला है, ठीक है। और 1900 BC के बाद नो साइंस ऑफ एग्जिस्टेंस मिला, जबकि ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन 1900 के बाद भी कंटिन्यू की थी। और एरिया वाइज देखा जाए तो ये ज़्यादा हरप्पा का ज़्यादा था, ठीक है। अब ये पोस्ट अर्बन फेज़ ऑफ हरप्पन कल्चर या लेट हरप्पन 1900 से 1300 की जो बात हो रही है, ठीक है, ये देख लो क्या है। द मैच्योर अर्बन फेज वॉज फॉलोड बाई लेट हरप्पन फेज विच वॉज मार्क्ड बाई डिक्लाइन ऑफ अर्बन लाइफ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। द स्टाइलिस्टिक होमोजेनिटी ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन डिसअपियर्ड इन द पोस्ट हरप्पन स्टेज वॉज मार्क्ड बाई शार्प स्टाइलिस्टिक डाइवर्सिटी. Elements of urbanism like seals, specialized crafts, cities, long distance trade and so on declined but did not completely disappear. ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये सब डिक्लाइन तो हुआ था. Elements of urbanism like seals, specialized crafts, cities, long distance trade and so on declined but did not completely disappear. Some of the few urban centers surviving in late Harappans were कुडवाला इन चोलिस्तान, ये कैसा नाम है यार, कुडवाला चोलिस्तान, और बेट द्वारका इन गुजरात, एंड दाइमाबाद. A key development in this phase was the beginning of double cropping. ये ध्यान रखना. तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर मैंने बताया ना, उस डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, डबल क्रॉपिंग, चोलिस्तान, कुडवाला एंड दाइमाबाद, ये कुछ लेट हरप्पन साइट्स हैं. बेट द्वारका में भी है. एंड अदर की फीचर्स ऑफ दिस पीरियड, द डिक्लाइनिंग कल्चर इन दिस फेज इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज सब इंडस कल्चर. द रूरल सेटलमेंट्स ऑफ दिस फेज आर प्राइमरली Chalcolithic in nature, and the post-urban Harappans lived in villages subsisting on agriculture, stock raising, hunting and fishing, और replaced with less intricate designs. पेंटेड ग्रे वेयर आ चुका था अब, ठीक है. पहले रेड ब्लैक वेयर था और अब पेंटेड ग्रे वेयर आ गया. All late Harappan sites lack human figurines in comparison with mature Harappan pottery. The pottery in the late Harappan phase was less bright. उसकी चमक भी कम हो गई थी. The pots were thicker and sturdier, and many peculiar Harappan shapes like perforated jars, S-shaped jars disappeared. No object for measuring length is noticed in the late Harappan phase. The period marks the end of Harappan trade with West Asian centers such as lapis lazuli, shirt, carnelian beads, copper and bronze vessels are either absent or scarce as trade items. तो वेस्ट एशिया के साथ ये ट्रेड कम हो गया हमारा लेट हरप्पन में, स्पेशली लपीस लजूली, शर्ट, कार्नेलियन बीड्स. इंपॉर्टेंट प्लेसेस पर्टेनिंग टू दिस फेज आर प्रभास पाटन, सोमनाथ है, रंगपुर गुजरात है, स्वॉट वैली मांडा एंड संगोल एंड दौलतपुर इन हरियाणा, आलमगीरपुर और हुलास, दे आर नोन फॉर लेट हरप्पन कल्चर्स. बाकी ऊपर हमने देखा ही है, कुडवाला इन चोलिस्तान एंड द्वारका बेट, और आलमगीरपुर, और ये क्या है, हुलास, स्वॉट वैली मांडा, ये भी लेट हरप्पन है. अभी कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, ठीक है, तो ये भी देख लेते हैं, या पहले हम क्वेश्चंस देख लेते हैं. तो ये देखो, विच आर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक characterize the people of Indus Valley? Great places, they possess great places and temples. Galat. They worshipped both male and female deities. Yes, and they employed horse-drawn chariots in warfare.
तो इसका आंसर होएगा 2 ओनली, ठीक है। फिर सेकंड देखो, रिगार्डिंग द इंडस वैली IBC, consider the following statement. It was predominantly a secular civilization and the religious elements, though present, did not dominate the yes. During this period, cotton was used for manufacturing textiles. Yes, I think correct. And तो दोनों ही सही हैं भाई, cotton was known. And then ये देखो, match list 1 with list 2 and select the right answer using quotes given below. लोथल, कालीबंगन, धोलावीरा, बनावली। अब तो धोलावीरा में C के साथ जाएगा 4, तो आंसर इज़ B, आइदर B और C। तो फिर और लोथल में डॉकयार्ड, तो A का 2, C का 4, A का 2, सो दिस इज़ द आंसर, B ऑप्शन, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वाज नॉट रिप्रेजेंटेड इन सील्स एंड टेराकोटा आर्ट ऑफ हरप्पन। तो भाई काऊ नहीं था, एलिफेंट था, राइनो था, टाइगर था, काऊ नहीं था। तो देखो आंसर क्या, फोर्थ का A है, एंड थर्ड का तुमने क्या लगाया, थर्ड का B है, करेक्ट। सेकंड का C, फर्स्ट का B, सेकंड का C है, एंड फर्स्ट का B। ये कैसा ऑप्शन है भाई, B में तो ओनली लिखा हुआ है, अजीब बात है। तो फर्स्ट वाला चलो उसका आंसर ही नहीं दिया है, तो क्या करें। अब ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, चलो इसको छोड़ो। स्टोन कट रिजर्वायर ये कहाँ मिला भाई, सेकंड का देखना आंसर क्या है। स्टोन कट रिजर्वायर सेकंड का C बता रहा है, देखें ज़रा। स्टोन कट, अरे खोलो यार, धोलावीरा में है स्टोन कट रिजर्वायर, अच्छा। फिर हड़प्पा है, दाइमाबाद है, कालीबंगन में फायर ऑल्टर्स, यस दैट इज़ करेक्ट। एंड मोहनजोदारो में ग्रैनरी तो है, यस। C का 3 भी सही है, D का 4 भी सही है, बट एक्चुअली C का 2 भी होना चाहिए ना, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल। तो C का 2 जाएगा, है ना, और D का 4 जाएगा, C का 2, D का 4, तो फिर D ऑप्शन ही है, बस लगा दो, ठीक है। फिर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मार्क द ऑप्शन विच इज़ करेक्ट। द फर्स्ट मैन मेड पोर्ट वॉज फाउंड इन हरप्पा, फर्स्ट मैन मेड पोर्ट। The main crops of Indus Valley civilization were wheat and barley, yes. The largest urban settlement in India is Rakhigarhi. The largest number of settlements are in the Ghaggar-Hakar Valley. Ghaggar-Hakar Valley, largest number of settlements. नहीं, I don't think so. फोर्थ वाला का आंसर देखना ज़रा, फोर्थ वाले का आंसर है C, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ का C है, वन दैट इज़ 2, 3 and 4, यानी कि फर्स्ट मैन मेड पोर्ट वॉज फाउंड इन हरप्पा, दैट इज़ रॉन्ग। The main crops wheat and barley सही है। The largest urban settlement in India is राखीगढ़ी सही है। The largest number of settlements are in the घग्गर हाकर वैली। तो चलो ये भी नया बात पता चल गया, घग्गर हाकर वैली में लार्जेस्ट नंबर ऑफ सेटलमेंट्स हैं, ठीक है। और थर्ड का D था क्या, देख लो ज़रा एक बार। थर्ड का D है, यस यू आर राइट। अच्छा, सारे नहीं, 7-8 और कर लो बस। तो फोर्थ का हो गया, फिफ्थ देख लो। अब ये तो भाई पता है भाई, मोहनजोदारो एवरीवन नोज़, ये मोहनजोदारो किसने किया था, बैनर्जी ने, A का 3 जाएगा। और लोथल SR राव ने किया था, D का 2 जाएगा, A का 3, D का 2, तो A और B में जाएगा। अब हरप्पा बचा तो वो दहरामसानी चला जाएगा। चलो ये फिफ्थ तो आता है हमको। सिक्स्थ देख लो, नदियाँ हैं तो ये भी आता है मुझे। सेवन्थ देख लो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मार्क द ऑप्शन विच इज़ करेक्ट। राइसस्क, लोथल एंड रंगपुर में मिला है, करेक्ट। Evidence of decorated bricks used in flooring has been found in Kalibangan. Decorated flooring, I think yes, that is correct. A clay model of plough has been discovered in Banavali, yes. The statite figure of a bearded man has been recovered from Mohenjo-daro. Bearded man, yes. मुझे सारे ही सही लग रहे हैं। तो सेवन्थ का A देखना है क्या, सेवन्थ का A सही है, करेक्ट, ठीक है। फिर एट्थ वाला देख लो, मोहनजोदारो में चानोदारो विदाउट सिटाडेल, करेक्ट। लोथल डॉकयार्ड, करेक्ट। हरप्पा में सैंडस्टोन मेक डांसर, हाँ तो सही है। सैंडस्टोन के डांसर कहाँ मिले हैं, वो हरप्पा में मिले हैं। और मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ मिला है। ग्रेट बाथ मोहनजोदारो में नहीं मिला था, मुझे लगता है। नहीं, सही है, 1, 2, 3, 4 इसका भी जाएगा। मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ मिला। एट्थ का भी A जाना चाहिए, देखना ज़रा। एट्थ का भी A है, वेरी गुड। तो ग्रेट बाथ भी मोहनजोदारो में है, ठीक है। फिर और देख लो, ये नाइन्थ का देखना, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मार्क द ऑप्शन विच इज़ करेक्ट। ब्रोकन आइवरी वॉज यूज्ड एज अ स्केल इन चानोदारो ड्यूरिंग बरियल, बॉडीज वर लेड डाउन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो। ये क्या बात हुई भाई, तीसरा स्टेटमेंट कैसा लिखा हुआ है, क्वेश्चन ही गलत है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मार्क द ऑप्शन विच इज़ करेक्ट।
Fertility goddess denotes people's faith in fertility cult. The area occupied by Harappan civilization was triangular in shape. Yes. Remains of the horse have been discovered from Surkadota. Yes. And painting on a jar resembling the story of a cunning fox from Panchatantra has been found in Lothal. मैंने इसको पिक किया था पॉइंट को. 10th का आंसर देखना ज़रा. 10th का आंसर बी है. ठीक है, मैंने बताया था. दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट. ठीक है, तो पंचतंत्र वाली बात और फॉक्स वाली बात ये लोथल से आई थी जहाँ डॉक मिला था. एंड रिमेन्स ऑफ हॉर्स सुरकाडोटा एंड द एरिया ऑक्यूपाइड बाय हरप्पन सिविलाइजेशन वाज ट्रायंगुलर इन शेप एंड फर्टिलिटी गॉडेस डिनोट्स पीपल्स फेथ इन फर्टिलिटी कल्ट. ठीक है, इतने सवाल काफ़ी हैं.